My screen is visible to all, right? Yes, ma'am. Okay. Okay. So today we are starting with another topic related to emergence of Eastern psychology, that is Bhagavad Gita. Now, before starting with Bhagavad Gita, let us briefly overview what are the key features of Indian psychology or what is Indian psychology basically. Okay, so I think as far as you already know, the term Indian psychology here emphasizing the origin of the knowledge of psychology. Okay, in terms of Indian psychology, we are referring to the origin of ideas basically. Okay, that is Indian in nature. It is not just about Indian people. Indian psychology is not just about Indian people, it is about the Indian ideas, Indian nature of ideas. So, yesterday we learnt about indigenization, the process of indigenization. And because of that indigenization, uh, we have introduced Indian psychology. Like you can consider it as a product of indigenization. Okay, so you should never get confused about both the terms, indigenization and Indian psychology, right? So, Indian psychology is a product of indigenization itself. Okay, now, as I have already told you, the word Indian indicates the origin of its approach, which includes the underlying philosophy, the conceptual framework, the methods involved in its inquiry, the technology of consciousness, which we will deal later on, and to bring about psychological changes and transformation. So, Indian psychology is not just about the philosophical part to understand certain concepts of self consciousness. It basically try to target the transformation part that is required, okay, to bring a shift in one's personality. Now, as far as methods are concerned, in India, in Indian psychological system, we focus mainly on the process of introspection. ठीक है, आत्म चिंतन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, खुद को बेहतर तरीके से जानना. So self introspection is one of the main method here. Then we have the concept of reasoning as well. Indian psychology is not devoid of any like objectivity, as you say. जब कहा जाता है ना, it is very subjective in nature और कुछ scientific नहीं है इसके अंदर. This is not fully true, because if you start reading Sankhya philosophy in Indian psychology, it is very very much logical in nature. Okay, आप सांख्य करिका कभी पढ़ के देखिए. The examples given in that book is very very logical in nature with lot of examples. Okay, so reasoning is definitely involved. जब सांख्य philosophy आई थी, then there are certain other philosophies as well. तो उनका जो बेस था उन फिलोसफीज का, दैट वाज वेरी वेरी मच लॉजिकल इन नेचर. वहां पे प्रमोट किया जाता था कि आप लॉजिकल कॉन्वर्सेशन कीजिए, रीजनिंग कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तब जाके तर्क वितर्क करके आप किसी चीज को मानिए. तो ये तो कोर रहा है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम का भी. देन एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस. सो वट एवर वन हैज एक्सपीरियंस्ड, analyzing that particular experience is also one of the method from where such therapies, such concepts, some psychological concepts can be derived. Okay, so experiencing one thing oneself is one of the major method here. Then guru shishya relationship, I guess this is very much clear. इंडिया में परंपरा रही है हमेशा से गुरु शिष्य रिलेशनशिप की. और वहां ये जो मेथड था, वहां से सारी लर्निंग ट्रांसफर होती थी. द लर्निंग वाज मेनली ट्रांसफर ओरली. ओरल मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहता था. लेकिन
वो जो नॉलेज थी वो इतनी ऑथेंटिक थी, शिष्य का गुरु के प्रति इतना सरेंडर और समर्पण रहता था कि इट हैज लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एडवांटेज। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो हम बात कर रहे हैं, और उस रिलेशनशिप का भी अपना एक पर्सनल एडवांटेज मिलता था। सो like this only several indigenous models has been conceptualized. Now as far as the application point of view is considered, ancient Indian thought, which is like very rich in psychological insights, it include constructs such as mental health and illness, cognition and emotion, attention, motivation, perception, self, personality, psychopathology, and its treatment. Okay, so ye references given here. This is from certain review papers, research papers, and various concepts in Indian literature like belong to these particular areas or constructs of psychology. Like अगर हम illness की बात कर रहे हैं तो चरक संहिता है, then आयुर्वेदा है, और इन सब का mental health के साथ क्या connection है वो भी describe किया गया है इन books के अंदर, right? Cognition or emotions, whether you learn about any Puran और एनी एपिक और एनी स्क्रिप्चर इन इंडिया, ठीक है, आप कोई भी स्टोरी आप उठा लीजिए किसी भी पुराण की, या हम महाभारत की बात कर रहे हैं, हम रामायण की बात कर रहे हैं, वहां सब में हमें कॉग्निशन और इमोशंस को कैसे डील करना है उन सब पे बात की गई है। अगर आप एक एक करेक्टर पे बात करेंगे, आप उस पे मंथन करेंगे, तो यू विल ऑलवेज गेट टू नो व्हाट इज देयर। देन अटेंशन और मोटिवेशन, सिमिलरली हमें जो इंडियन फिलॉसफी का जो मेन एम रहता है वहां पर मोटिवेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फिलॉसफी करें, क्योंकि मोटिवेशन यहाँ पर इज बियॉन्ड योर बेसिक नीड्स। ओके, एक नीड होती है, हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, दीज आर आवर बेसिक नीड्स। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडियन फिलॉसफी और साइकोलॉजी, it always try to seek something higher, some kind of self fulfillment। उस तरीके की मोटिवेशन की बात होती है, which one tries to work for that kind of motivation to get liberated from this like mental bondage, this physical bondage, okay, to get liberated, to have some kind of self fulfillment, to have some kind of सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वो जो एक सेटिस्फाइंग नीड होती है ना लाइफ में, कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए, तो वहां पे यहाँ इंडियन साइकोलॉजी का ज्यादा फोकस रहा है, राइट? देन स्टडीज ऑफ परसेप्शन, सेल्फ सॉरी कैन वी से कि इंडियन साइकोलॉजी में मोटिवेशन का एक मेटा लेवल स्टडी किया जाता है? यस, डेफिनेटली मेटा लेवल की ही बात की जाती है यहाँ पे। देन सेल्फ एज यू नो, सेल्फ का तो like the whole area of Indian psychology rotates around the theme of self only। मतलब self को जानना और समझना, that is the main goal, the term self realization, to realize one own self। okay, again this construct of self from the perspective of Indian psychology is much broader as compared to the concept of self which we used to study in western world of psychology, right? तो समझने के लिए आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को साथ लेके चल सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ऑल्सो, बट द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हैज अ वेरी मच ब्रॉडर पिक्चर, एंड द मेन थीम एरिया इज सेल्फ हियर। ओके, टू कनेक्ट विद सेल्फ, जैसे हम कांग्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ह्यूमनिज्म में, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेंस, अपने साथ रिलेट कर पाना, आपके ट्रू सेल्फ में, आपकी आइडियल सेल्फ में ज्यादा डिफरेंस ना होना, कॉन्ग्रेंस होना, राइट? हम वो बात करते हैं वहां पे। तो सिमिलरली इन इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, वी ट्राई टू अचीव दैट स्टेट ऑफ सेल्फ जहां पर हम खुद के साथ द ट्रू आइडेंटिटी, अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, right? And according to Indian system, our true identity is not this body and not even our mind,
and not even our thoughts or even our emotions. ठीक है, तो ये जो हम बात करते हैं इमोशंस, थॉट्स, जहां से हमारे ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस डिराइव हो रहे हैं, बेसिकली दे हैव like sorry they are temporary in nature, and anything which is like such temporary in nature cannot be one's true identity. So this is not our true self, and the issue creates from there only, जब हम इन इन चीजों के साथ खुद को रिलेट करते हैं, खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक आई एम दिस बॉडी, ठीक है, एंड विद टाइम वी विल गेट ओल्ड, आवर स्किन विल स्टार्ट लाइक गेटिंग ओल्ड, एंड हम उसके साथ आइडेंटिफाई हमें करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी हमें लगता है लाइक वी आर सो ब्यूटीफुल एट सम पॉइंट इन लाइफ, जैसे अभी हम वैसे हम नहीं दिखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू फील बैड अबाउट इट. Why? Because we are identifying ourselves with this body. Similarly, it happens with our thoughts and emotions. हमें लगता है whatever we are feeling, that is permanent. हमारे जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, या आपके अंदर जो अटैचमेंट्स आते हैं, जो डिजायर्स आते हैं, हम उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं. ये मेरा इमोशन है, मुझे बुरा लगा, मुझे वो पसंद है, मुझे वो नापसंद है. तो हम सब चीज को खुद से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, अपने थॉट्स को भी, जो कि बहुत ही टेम्पररी हैं. हो सकता है आज आपको कुछ पसंद है और कल वो आपको पसंद ना हो, राइट? और हो सकता है अभी जो आपको ना पसंद है वो बाद में जाके आपको पसंद में आ जाए, राइट? तो ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होते हैं थॉट्स हमारे, इवन विद आवर इमोशंस. कभी हमें रोना है, कभी हमें हंसना है, कभी हम अच्छा महसूस करते हैं, कभी बुरा महसूस करते हैं, कभी गुस्सा भी आता है. इवन दैट इज वेरी टेम्पररी इन नेचर, राइट? But we have tendency to flow with all these kind of emotions and with our thoughts, ठीक है, which is not our true identity. The moment anyone realizes the fact that we are not our mind, we are not our thoughts and cognition, we are not this body, automatically all the mental challenges will vanish. It is just a matter of realization. ओके तो जितना ये जो केओस हम लोग मचाते हैं लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होने लगता है, जस्ट अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन. सो इंडियन साइकोलॉजी का मेन फोकस उसी सेल्फ पे रहता है. अगर हम ट्रू आइडेंटिटी भी जान ले सेल्फ की, तो एवरीथिंग एल्स विल वैनिश, ठीक है, देयर विल बी नो मेंटल एलिमेंट. एंड देन साइकोपैथोलॉजी एंड इट्स ट्रीटमेंट एज वेल. तो अभी जैसे मैंने बात करी है, अगर हम ऑलरेडी सेल्फ पे काम करेंगे, पर्सनालिटी, जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी है, जैसे हम कल भी वैदिक पर्सनालिटी की बात कर रहे थे, जिसमें 3 गुना का कॉन्सेप्ट आता है पर्सनालिटी के अंदर. अगर हम उस तरीके से पर्सनालिटीज को जानते हैं, समझते हैं, तो जो साइकोपैथोलॉजी है उसके सॉल्यूशंस भी वहीं से आएंगे. जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हम फेस करते हैं उसके सोल्यूशन भी वहीं से आएंगे, राइट? ग्रेजुअली विल गो इन लाइक डीपर डिटेल्स. आज भगवत गीता पढ़ेंगे, बट ये अभी हम जनरल बात कर रहे हैं. सो लेटर ऑन व्हेन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, सूफीज्म, योगा, they all are interrelated, okay, and all these things will come under all these headings, okay. Now again, I guess we have discussed this thing. The major goal of Indian psychology is realization of self, खुद को जानना, right? और self is viewed as major concept to bring about behavior change. और अगर हम self को जान जाते हैं तो automatically हमारे behavior में adaptive changes आ जाते हैं, okay? So there are number of scriptures, जिसमें से कि एक है भगवत गीता, जहां पर इस गोल को बहुत क्लियरली टारगेट किया जाता है, राइट? एंड वी हैव लाइक rich literature, many other scriptures, many Vedas working on the similar kind of theme. Also, in ancient Indian thought, mental health was described as part of health. Health को Indian literature में कभी mental health को health से अलग नहीं माना गया था कभी भी, ओके? जैसे कि मैंने कहा, आप चाहे आयुर्वेद उठा के देखिए, चाहे चरक संहिता उठा के देखिए, ठीक है, जहां पर एक्चुअली सर्जरी और दवाइयां और कैसे हम हील हो सकते हैं, सारी बातें की गई हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज एन एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इन इट. मेंटल हेल्थ
उसके साथ इंटीग्रेटेड है, कभी भी उसको अलग ब्रांच नहीं बनाया गया। मेंटल हेल्थ को हमेशा इंडियन फिलॉसफी लेके चल रहा था। So Indian psychology seeks to understand mainly what is the nature of I and self, which we have just discussed, okay, and its relation to the entire cosmos, entire universe के साथ उसका क्या connection है, okay, the birth and death of me. You can understand this as an existential quest. जो हम साइकोलॉजी में भी एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो यू कैन कंसिडर इट लाइक दैट, बिकॉज हम सबने कभी ना कभी लाइफ में ये फेज विटनेस किया है व्हेन वी यूज्ड टू थिंक कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ चले जाएंगे एक दिन. सो सच क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉमन, आई गेस, जो सबके मन में कभी ना कभी तो आते हैं लाइफ के किसी पॉइंट पे. The only difference is that certain people entertain such questions and certain people, like, they just ignore this part of life, right? So this is an existential quest which helps one to seek the meaning in life, the purpose in life, right? Now, another thing is, how can one free oneself from the sufferings of life? Okay, so whatever sufferings we used to face, because life is like a synonym to suffering, we can say a bit in today's world. So how can one get free from all these suffering? तो इसका आंसर भी हमें इंडियन फिलोसफी में, इंडियन साइकोलॉजी में मिलता है, राइट? देन हाउ टू चूज अमंग्स मल्टीपल ऑप्शंस दैट लाइफ प्रेजेंट्स, यानी कि डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है यहाँ पे. इन लाइफ वी यूज टू फेस नंबर ऑफ डिफरेंट फेजेस जहां पर हमें कुछ डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है. हमारे पास लाइफ में दो ऑप्शन होते हैं और हमें दोनों ही मुश्किल लग रहे होते हैं, एंड वी हैव टू चूज, राइट? एट टाइम्स ऑफ ऑप्शंस, एक दो से भी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, बट उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है लाइफ में कि यहाँ जाना है कि वहां, ये रास्ता चूज करना है कि वो, इसमें भी नुकसान दिख रहा है, उसमें भी नुकसान दिख रहा है, राइट? तो इवन द कंसेप्ट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी हैज पोटेंशियल टू ट्रेन यू to choose, to stand by your decisions, okay? And finally, how to live at peace with oneself, others and the larger world. तो अल्टीमेट यहाँ पे एक और गोल क्या आ रहा है, हमें कैसे पीस में रहना है, ब्लिस में रहना है. जैसे बोलते हैं ना, सत चित आनंद. आनंद इज द अल्टीमेट, द ब्लिस, दैट स्टेट ऑफ in the state of being at in supreme bliss, peaceful state में. सिंपल सी बात है, everyone in this life wants to be happy, right? but there is a bit difference. happiness और peace में थोड़ा सा फर्क है. again, happiness is transient in nature. हमें आज कोई गिफ्ट मिला है तो हम बहुत खुश हो सकते हैं, right? but the next moment we have some other desire in life, और अगर वो desire fulfill नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं. तो दैट इज समथिंग टेम्पररी इन नेचर अगेन. और कोई भी टेम्पररी चीज लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग नहीं, मतलब कोई भी चीज जो टेम्पररी है वो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकती है, या वो हमारा गोल नहीं होना चाहिए एटलीस्ट लाइफ में. तो वी आर सीकिंग दैट अल्टीमेट स्टेज ऑफ ब्लिस. अब ब्लिस किसके साथ है? आपको खुद के साथ होना चाहिए, सबसे पहले खुद के साथ. अगर आप, अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम हायर लेवल पे ना भी जाएं, जो हम कॉन्ग्रेंस की बात कर रहे थे, अगर आप खुद के साथ डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस अलाइंड नहीं है आपस में, ओके, तो दैट विल कॉज स्टेज ऑफ डिसकॉन्ग्रेंस. आप डिसकॉन्ग्रेंस फील करेंगे अपने अंदर, राइट? But the idea is to achieve the state of congruence, to connect with one's own self, to connect with one's true identity. और जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो gradually we'll be able to connect with other people. हम दूसरे लोगों को भी बेहतर जान पाएंगे और समझ पाएंगे, right? And gradually we will be able to understand the whole world. मतलब it will become again easy for us to connect with the whole world, right? So like you have seen number of people ना, कुछ लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, लाइक हैंडलिंग रिलेशनशिप स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? दे कैन
they can connect with other people easily, या anyone can connect with them easily. आप reverse vice versa भी कह सकते हैं कि उनके पास सबको जाना अच्छा लगता है, they can easily connect, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बात मन की समझ जाते हैं इजीली, राइट? तो दैट इज वन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. अब वो कब पॉसिबल है? जब वो इंसान खुद के साथ पीस में है. ओके, व्हेन अ पर्सन इज इन पीस विद ओन सेल्फ, तो उसके पास आने में सबको पीस फील होता है, राइट? एंड जब वो पीस एक्सपैंड होने लगता है, आपका ऑरा एक्सपैंड होने लगता है, तो ग्रेजुअली उसमें पूरा यूनिवर्स आने लगता है. आपकी एनर्जी पूरे वर्ल्ड तक एक्सपैंड होने लगती है. लाइक जितने भी हम स्पिरिचुअल गुरुज आज के टाइम में देखते हैं, द एक्चुअली द गुड स्पिरिचुअल गुरुज हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर सर्टेन गुड पर्पसेस, तो आपने देखा है ना, लोग कहाँ कहाँ से उनसे जुड़ जाते हैं, राइट? और उनसे कनेक्टेड फील करते हैं. उनकी प्रॉब्लम्स वो गुरु उनके कहे बिना समझ जाते हैं, राइट? तो दैट इज एन एग्जाम्पल. कनेक्शन विद सेल्फ होता है, जब कनेक्शन विद अदर्स होता है, एंड ग्रेजुअली दैट सर्कल कीप्स एक्सपैंडिंग, बिकॉज व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड वही आउटसाइड भी है. हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्म आस्मि, यानी कि जो पूरा ब्रह्म, जो हम विश्व की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स कॉस्मोस की एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो ही एनर्जी, वो ही संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर विद्यमान है. दैट होल यूनिवर्स, that whole potential, that whole energy lies within us, right? And when we realize all of this, there is a state of sat chit anand. Okay. Ma'am, what is insentient and sentient beings? Okay. Insentient and sentient beings, abhi ke jagah I'll explain this in detail in the class of integral yoga. ठीक है, ये terms वहीं से लिए गए हैं. ओके मैम. रेदर देन गोइंग इन डिटेल अभी इसके अंदर, ठीक है, हम ये एग्जैक्टली हम इसको इंटीग्रल योगा की क्लास में समझेंगे. दीज टर्म्स आर गिवन बाय औरोबिंदो. ओके मैम. ओके. देन द एंशिएंट इंडियन पीरियड has Vedas like Rigved, Samved, Yajurved initially. In the later Vedic period, Atharved was given, then Brahmanas, then Aranyakas, then Sahitas. तो पहले वेद आए. नाउ देन वेदों पे कमेंट्री लिखी गई जो कि ब्राह्मणास और अरण्यकास में आई, ठीक है. देन उपनिषद आए. उपनिषद ने क्या किया? इन सबको कंपाइल करके उन सबका जेस्ट निकाल के वैदिक नॉलेज लिखी उपनिषद में, ठीक है. देन लेटर ऑन आफ्टर उपनिषद, यही इसी पीरियड में आपके एपिक्स आए लाइक रामायण एंड महाभारत, ठीक है. आफ्टर उपनिषद रामायण और महाभारत आए. दिस बुद्धिज्म पीरियड के, एंड देन आफ्टर बुद्धिज्म आल्सो इस पीरियड में इन बिटवीन दिस पुराण भी लिखे गए थे, है ना, लाइक भगवत पुराण, एंड देयर आर लाइक नंबर ऑफ पुराणास. तो पुराण लिखे गए. तो बेसिकली वो यही नॉलेज है, वैदिक नॉलेज ही है. टाइम टू टाइम people were there to simplify that knowledge and to adapt that knowledge according to the requirement of the people of that particular period. तो उस समय के जो लोग थे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इन वेदास को सिंप्लीफाई किया गया. तो कभी ब्राह्मणास बने, फिर उपनिषद बने, फिर पुराण बने, बीच में स्क्रिप्चर्स बने. तो उसी नॉलेज को सिंप्लीफाई करने के लिए ये दिए गए थे अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन, ठीक है. जैसे कि हम रामचरितमानस की बात करते हैं, ठीक है. तो रामचरितमानस भी कहानी तो वही है राम जी की, लेकिन it was I guess it was written in अवध language, okay, to simplify, क्योंकि उस वक्त वहां की उस वक्त जो जनता थी, जो लोग थे, उनको संस्कृत नहीं इतना समझ में आती थी. तो इसलिए अवध भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किया गया, so that the normal people, the layman people can even understand that knowledge and can get benefited from it. Okay. Indian implication of Indian knowledge. So Indian scriptures and spiritual practices help to discipline our mind to achieve balance, जिसे सम्य अवस्था बोलते हैं, या फिर भगवत गीता भी अभी हम पढ़ेंगे, समत्व भाव जो होता है. So we have a balanced mind, disciplined mind,
टू ओवरकम द हिंड्रेंस इन द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो यानी कि वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के बीच में जो भी परेशानियां आती हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट रोल्स वी प्ले इन आवर लाइफ। जैसे हमारे रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, ओके, या हम सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम खुद में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं लाइफ में, वो सब भी हमें मतलब जानने को मिलता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ऑल्सो अगर हम इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, फ्रॉम द गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, it teaches us about wisdom and knowledge, the true wisdom and knowledge enhance होता है इससे। how can one be courageous and humanity कैसे बढ़ सकती है, justice and transcendence अपने कॉन्शियसनेस के इस लाइफ के कॉन्शियस सेल्फ के भी बियॉन्ड जाना, ठीक है, बियॉन्ड योर सेल्फ जाना, हम कैसे ट्रांसडेंस की तरफ जा सकते हैं, एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, एंड हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ वर्थ लिविंग। तो अगेन इंडियन साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट, जैसे हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमें माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना है सिर्फ, जैसे कि क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में होता है ना, कोई बीमारी है, कोई मेंटल एलिमेंट है और हमें उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। बट पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहती है, ये भी तो हो सकता है, हम नॉर्मल स्टेज में हैं, हम पॉजिटिव में हैं, हम अगर हम सपोज टाइमलाइन हम लेते हैं -1 to 0, तो हम 0 से +1 की तरफ भी तो जा सकते हैं, राइट। तो यानी कि हम न्यूट्रल से और ज्यादा बेहतर की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सेल्फ ग्रोथ की तरफ, पर्सनल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। तो सिमिलरली इंडियन साइकोलॉजी का भी एक मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ काम करें, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ काम करें, ठीक है, अपने पोटेंशियल को जानने की तरफ काम करें। ओके, एनी डाउट स्टिल है? ओके, so now we'll start with Bhagavad Gita. Okay, so before I start, I would like to know anything you already know about Bhagavad Gita. Anyone? स्वयं भगवत गीता हमारा एक महाकाव्य है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे जब वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, उसे दूर किया था। राइट, समझ नहीं आ रहा था क्या उचित है क्या अनुचित है, तो तब उसके द्वंद्व को दूर किया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। जी, और वो द्वंद्व क्या थे? मैम, धर्म और कर्म के बीच किसको चूज करना चाहिए, वेदर टू चूज व्हाट इज needed to be done or choose your relationships, because उनके भीष्म पितामह और ऐसे काफी important लोग वहां पर प्रेजेंट थे, उनके ऑपोजिट में लड़ना था अर्जुन को, तो उनसे रिलेटेड जो भी द्वंद्व थे उनके लिए श्री कृष्ण एक तरह से गाइडेंस दे रहे थे, सारथी बने थे। राइट। सो यहाँ पर जैसे कि अभी आपने बताया, कृष्ण जी हैं, अर्जुन जी हैं। अर्जुन लाइफ, मतलब उसकी लाइफ में एक बैटल है, बहुत बड़ा बैटल है, जिसकी एग्जाम्पल आज भी हम लोग देते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाता था, राइट। और उस बैटल के स्टेज में कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे, उनके रथ के सारथी थे, ठीक है। और अर्जुन कृष्ण जी को बोलते हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, हम चलते हैं, सेनाओं के मध्य में चलते हैं। अब वहां जाके अर्जुन क्या देखता है कि सामने ऑपोजिट टीम में, ठीक है, वॉर की डेट है, एक अर्जुन की टीम है, एक ऑपोजिट टीम है। ऑपोजिट टीम को एक बार निहारता है, एक बार देखता है, एंड व्हाट ही सीज कि देयर वर रिलेटिव्स, हिज ओन रिलेटिव्स फ्रॉम हिज ओन चाइल्डहुड। कौन कौन थे? उसके भाई थे। सामने टीम में कौन कौन था? सब उसके भाई थे, उसके कजन्स थे, ठीक है। देन उसके गुरुजन थे, हिज टीचर्स, जिनसे उसने शिक्षा ली थी, शिक्षा ग्रहण करी थी, ठीक है। सब ओल्डर रिलेटिव्स, एल्डर्स थे, घर के बड़े बुजुर्ग थे, ठीक है। अब ये सब ऑपोजिट टीम में खड़े हैं और युद्ध का मतलब है इन सबका वध करना, राइट। और
क्यों युद्ध हो रहा है? अच्छा, ये युद्ध हो जाएगा, फिर ये जीत जाएंगे, फिर क्या होगा, सारा जो राज्य था वो पांडवों को मिल जाएगा। कृष्ण, सॉरी, जो अर्जुन थे वो पांचों पांडव में से एक थे, ये पांचों भाई की तरफ से युद्ध हो रहा था। और अगर ये जीत जाते कि तो क्या होता, सारा का सारा जो राज्य था वो उनके पास आ जाता। और ये युद्ध भी इसलिए हुआ था कि इनिशियली जो उनके भाई थे, दुर्योधन थे, वो इनका राज्य या इनका हिस्सा इनको देने के लिए तैयार नहीं थे। एंड देयर वर लाइक लॉट ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, बैड इंसिडेंट्स विच हैपेंड। वो जो बीच में द्यूत हुआ था, मतलब गैम्बलिंग जिसको हम बोलते हैं आज की भाषा में, गैम्बलिंग हुआ था, और इनका सारा राजपाट इनके भाइयों ने उस गैम्बलिंग में इनसे छीन लिया था। ओके, इवन इवन देयर वाइफ, लिया, छीना तो नहीं था, बट हाँ, मतलब ये लोग सब कुछ हार गए थे उस जुए में अपना। ठीक है, तो वो एक बैकेज में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, पुश था, जिसकी वजह से ये युद्ध की स्थिति क्रिएट हुई थी। राइट नाउ, इतना कुछ होने के बाद इस युद्ध तक जब सारी चीजें पहुंच गई हैं, अब इस मोमेंट पे आके व्हेन अर्जुन सॉ हिज आईज, ही पैनिक्स। उसको लिटरल पैनिक अटैक आता है। क्यों? क्योंकि वो इतना घबरा जाता है कि मैं क्या करूं, ये तो सब मेरे अपने ही हैं, अगर मैं इन सबको मार देता हूं तो जो राज्य पाठ मुझे मिलेगा उस राज्य का क्या फायदा? सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लाइक गेटिंग ऑल दीज वर्ल्डली प्लेजर्स इफ आई हैव टू किल माय ओन रिलेटिव्स? ठीक है, तो वो कहता है इन सबको मार के फायदा क्या है, मतलब वो जो राजपाट, वो जो स्वर्ग हो सकता है मुझे मिले, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा स्वर्ग, इन चीजों का क्या मतलब है? ठीक है, तो वो काफी लाइक हताश हो जाते हैं, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, और अपना धनुष छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं वहीं। मतलब इतना घबराहट होती है उनको, लिटरल जिसको हम बोलते हैं ना पैनिक अटैक्स आना, एंजाइटी प्रैंक्स होना, तो वो कप कप आने लगते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं ये गांडिव, गांडिव यानी कि जो उनका धनुष था उसका नाम था, कह रहे हैं ये गांडिव मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, गांडिव मेरे हाथ से छूट रहा है। ठीक है, तो वो पैल्पिटेशन उनको होता है और वो इतना कंफ्यूज्ड टेरिफाइड स्टेट में होते हैं, और वो वहीं अपने रथ में बैठ जाते हैं कि मुझसे तो ये युद्ध नहीं हो पाएगा। ओके, सो दैट वाज द होल सिचुएशन, एंड प्लीज कीप ट्राइंग टू रिलेट दिस स्टोरी जो चल रही है, हमें सिर्फ भगवत गीता को ही नहीं, उससे उससे हम क्या अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजिकली रेलेवेंस रखते हुए, वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो अर्जुन का स्टेट है, ये जो मेंटल स्टेट है, ये कभी ना कभी हम सबकी लाइफ में आता है। राइट, वी ऑल हैव यूज्ड टू हैव दोस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, जब हमें समझ नहीं आता है हमें क्या करना है लाइफ में, या हमें लगता है हम चारों तरफ लाइक, या हमारे उस तरफ जो लोग हैं, जो परेशानियां हैं, जैसे अर्जुन की तरफ तो उसके अपने भाई खड़े थे, हमारे तरफ कौन खड़ा होता है? हमारी तरफ अपने ही जो हमारे माइंड में, जो कहते हैं ना, वो एक एंजल होता है, एक डेविल होता है, तो जो हमारे ही अपने नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो ही खड़े होते हैं। ठीक है, और हम अपने ही माइंड के क्रिएटेड नेगेटिव थॉट से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हार मानने लगते हैं, गिव अप करने लगते हैं लाइफ में। राइट, तो दिस इज द वेरी कॉमन स्टेट जो अर्जुन फेस कर रहा है, वो हम सबकी लाइफ में ग्रेजुअली नेचुरली सब लोग फेस करते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ लॉर्ड कृष्णा काउंसिल्ड अर्जुन कि आपको अभी इस पॉइंट पे निराश नहीं होना है, और क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है। तो ये पूरी कहानी भगवत गीता में समराइज की गई है। ठीक है, ऑल द टीचिंग लॉर्ड कृष्णा गेव टू अर्जुना। तो आप इसको एक काउंसलिंग सेशन की तरह देख सकते हैं, हाउ कृष्णा एज अ काउंसलर वाज गिविंग गाइडेंस टू अर्जुन to get out of his depression, to get out of his anxiety zone, and to like get ready to fight again. ठीक है, so भगवत गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत। ठीक है, महाभारत, ये पूरा जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जो महाभारत की कहानी है, ये पूरा एक एपिक है। वहां से भगवत गीता, जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है, उस पार्ट को भगवत गीता के रूप में वहां से डिराइव किया गया है। देन
रिलीजियस बैकग्राउंड सनातन धर्म है इसका, इसके ऑथर व्यास जी थे, लैंग्वेज संस्कृत है. There are 700 श्लोक्स in Bhagavad Gita. There are 18 chapters and the time period was 4000 to 5000 BC है. Of 700 verses, 574 verses were spoken by Krishna as a counselor, 85 verses by Arjuna as a client, one verse Please go to the previous slide for a minute. Okay, ma'am, done. Okay. One verse by Dhritarashtra and 40 by Sanjay. अब ये कौन है? दो नाम आपने एक्स्ट्रा सुने यहाँ पे. When Bhagavad Gita starts, the very first chapter, the धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है, यहाँ से जब भगवत गीता स्टार्ट होती है तो वो धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू होती है. धृतराष्ट्र कौन थे? वो दुर्योधन के पिता थे. दुर्योधन कौन है? अर्जुन के आप कह सकते हैं बड़े भाई हैं, नॉट द रियल वन बट द कजन वन. धृतराष्ट्र अर्जुन के ताऊजी लगते हैं, ठीक है. तो वो पूछते हैं संजय से. संजय कौन है? संजय उनके वहां पे मंत्री है. संजय को कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो देख सकते थे. तो वो अपने राज्य में ही है, अपने राज्य क्या बोलते हैं, जो महल होता है महल में ही है. और संजय के पास दिव्य दृष्टि है. ही यूज्ड टू सी कि वहां पे कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है एंड ही यूज्ड टू ट्रांसलेट एवरीथिंग. और वो धृतराष्ट्र जन्मांध है, उनको दिखाई नहीं देता, ही इज ब्लाइंड, ठीक है. तो संजय सब कुछ धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध के मैदान पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है. तो संजय के 40 वर्सेस आते हैं यहाँ पे भगवत गीता में, जब वो एक्चुअली धृतराष्ट्र को ट्रांसलेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. बाकी आप देखेंगे ज्यादातर वर्सेस कृष्ण जी ने एज अ काउंसलर दिए हैं और लेस वर्सेस आर गिवन टू अर्जुन एज अ क्लाइंट, ठीक है. तो यहाँ पे एक रेलेवेंस, एक काउंसलिंग का मॉडल भी जनरेट होता है. एज अ काउंसलर वन हैज टू टेक द लीड, अदरवाइज क्या होगा, जो क्लाइंट होगा वो अपने ही जोन में, अपने ही वर्सेस में उलझा रह जाएगा, ठीक है. सो आई गेस वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज कि अर्जुन को क्या क्या इश्यूज थे. तो ही वॉज लाइक क्वाइट कंफ्यूज, अब मैं मारूं इन्हें तो क्या फायदा होगा मुझे, इस वर्ल्डली प्लेजर से मुझे क्या फायदा इनको मार के, ये तो मेरे अपने लोग हैं, या फिर मैं ये बैटल ही छोड़ देता हूँ, ठीक है. तो क्योंकि अगेन देयर इज नो बेनिफिट आउट ऑफ दिस वॉर, बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं है. तो आई शुड लाइक गिव अप, ठीक है, फाइटिंग इन दिस फ्रॉम दिस. तो वहां पर फिर कृष्ण जी आते हैं और अर्जुन को गाइड करने की कोशिश करते हैं. नाउ हमने बात करी देयर आर 18 चैप्टर्स और हर चैप्टर का एक नाम है जो कि योग नाम से ही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. नाउ द टर्म योग एक्चुअली इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत हेलो. chapters are as follows. It is divided, the 18 chapters have been divided into 3 parts. Karma Yoga, Gyan Yoga and Bhakti Yoga. The first 6 chapters are Karma Yoga, are referred to Excuse as me, Karma ma'am. Yoga. हाँ जी मैम, इसके पहले जो स्लाइड आपने बताया था वो टाइम आवाज चली गई थी. मैम Which स्टक one? हो गया था आपका नेट. पूरा स्टार्टिंग could से you ही please, नहीं समझा, repeat? सुनाई दिया. From which slide? मैम जब आप योगा का मीनिंग बता रहे थे. योगा का, हाँ. Okay.
from that side. So I was saying, मैं योगा के मीनिंग बता रही थी. The word yoga has been derived from the Sanskrit word, धातु word, युज, जिसका मीनिंग होता है यूनियन, टू यूनाइट, टुगेदरनेस, जोड़ना. किसको जोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे? विद सेल्फ. वो जो हम बात कर रहे थे क्लास के स्टार्टिंग में, टू कनेक्ट विद ओन सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे थे ना. तो यहाँ पर जो योग शब्द है उसका मीनिंग भी यही निकलता है, to connect with own self, self realization, to identify with our true self. तो योग शब्द आप जहां भी पढ़ते हैं उसका अल्टीमेट मीनिंग यही होता है, यूनियन विद सेल्फ. ठीक है, तो यही मीनिंग आपको लेके चलना है योग. So I was saying the 18 chapters of Bhagavad Gita have been divided into 3 parts: Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Jnana Yoga. First 6 chapters are referred to as Karma Yoga section. The next 6 chapters are referred to as Bhakti Yoga section, and the another last 6 chapters are referred to as Jnana Yoga section. Okay, we'll try to understand in brief about each chapter. Okay, starting with Vishad Yoga. विषाद, the word विषाद means दुख. यहाँ पे विषाद मतलब ये वो वाला पार्ट है जब अर्जुन अपना ग्रीवेंसेस एक्सप्रेस करता है कृष्ण जी के सामने, जब वो बताते हैं कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध करने की हालत में नहीं हूँ. ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, डायलेमा में हूँ. तो दैट इज विषाद योग. कैन एनीवन टेल मी व्हाई विषाद योग हैज बीन रेफर्ड टू एज योग here? डिस्ट्रेस ऑफ अर्जुन. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में अर्जुन ने अपना, जैसे होता है ना हमारा जो फर्स्ट, जब हम थेरेपी या काउंसलिंग सेशंस लेते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट डे हम क्या करते हैं? रैपो बिल्डिंग करते हैं. और उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो अपना कैथार्सिस करता है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है. दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? फर्स्ट डे हम क्लाइंट को देते हैं ना पूरा बोलने के लिए. Yes, ma'am. राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो रहा है. फर्स्ट चैप्टर में बात की गई है अर्जुन के प्रॉब्लम्स की, सिर्फ अर्जुन बात कर रहा है, अर्जुन ही बोले जा रहा है और खुद ही मतलब उसका माइंड इतना चल रहा है ना, इतना ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पे चल रहा है. एक चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स बनाया उसने अपने अंदर, ये होगा तो वो होगा, मैं सब लोगों को मार दूंगा, सब लोग मर जाएंगे, तो फिर बाद में इन फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे मतलब नर्क में जाना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी बातें वो बनाता है चैप्टर 1 में. ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रही थी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे, इसको योग क्यों बोला गया है? आई मीन, कैन एनीवन अप्लाई सम लॉजिक कि क्या दुख और योग का कोई कनेक्शन है आपस में? मैम, अ कलेक्शन ऑफ विषाद. हाँ, मतलब एक के बाद एक ही वाज टेलिंग, नो, उसकी चेन ऑफ थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उसको, तो वो एक से दूसरे को जोड़ते जा रहे थे. ओके. तो इससे मतलब वो योग, जैसे आपने बोला कि इट्स यूनियन, मीनिंग उसका यूनियन है. सो इन दैट वे आई कनेक्टेड. ओके, एनीवन एल्स? मैम, योग का बेसिकली मतलब है सेल्फ का यूनियन विद समथिंग ग्रेटर देन सेल्फ. सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जो भी डिस्ट्रेस है उससे लड़े. उसके आगे जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन या उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे. जैसे आपने -1 to +1 बोला था, जब तक हम -1 से 0 पर नहीं आएंगे तब तक हम +1 पे भी नहीं जा पाएंगे. सो फॉर कमिंग टू दैट 0, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने डिस्ट्रेस से पहले डील करें. राइट. आज जो दुख की हम बात करते हैं लाइफ में, जब भी हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट इज द ओनली टाइम जब हम उससे निकलने की सोचते हैं. राइट? मतलब दैट इज द ओनली टाइम हम सोचते हैं हमारी लाइफ में गलत क्या है, लाइक व्हाई आर वी फेसिंग ऑल दिस डिस्ट्रेस. राइट? ऐसा ही होता है ना? राइट. सो देर आर लाइक नंबर ऑफ स्टोरीज. अगर आप बाहर अभी देखते हैं, द पीपल हु हैज लाइक फॉट लाइक डिफिकल्ट डिसीजेस इन देयर लाइफ. किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को पीसीओडी होता है, किसी को कैंसर होता है, एंड
जब तक उनको होता नहीं है उनको लगता है लाइफ परफेक्ट है, लेकिन जब हो जाता है देन दे हैव अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन, यार क्या किया है लाइफ में, कुछ तो गलत किया है, समथिंग इज रॉन्ग इन देयर लाइफ पैटर्न, एंड देन दे ट्राई टू चेक व्हाट इज रॉन्ग इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ के कौन से हैबिट्स ऐसे हैं जो गलत है जिसकी वजह से दे आर सफरिंग फ्रॉम सच डिजीजेस, एंड देन दे ट्राई टू रेक्टिफाई इट ताकि उस डिजीज को रिवर्स कर सके। ठीक है, लेकिन अगर उनको वो डिस्ट्रेस होता ही नहीं, वो बीमारी आती ही नहीं, ठीक है, वो डिसऑर्डर होता ही नहीं, तो क्या वो उसको अंडू करने के लिए या ये सोचते उनकी लाइफ में क्या गलत पैटर्न है, क्या वो अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोच पाते? आर यू गेटिंग माई पॉइंट है? यस मैम। ठीक है, तो हम इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे विषाद योग की। तो सिमिलरली विद ऑल ऑफ अस, अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी बात करें, जब तक कोई इश्यू नहीं आता है लाइफ में, हमें पता नहीं चलता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, हम खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं until and unless we have that stage of suffering। ठीक है, और ये बार बार होता है हमारे साथ, बट ये होता है एट टाइम्स when we are in that particular stage of life, या कहते हैं ना बुरा समय बहुत कुछ अच्छा सिखा जाता है, तो वो अच्छा इसलिए सिखाता है क्योंकि बुरे समय में हमें पुश मिलता है लाइफ को रेक्टिफाई करने का, उसको बेहतर तरीके से जानने का, सेल्फ को जानने का एक मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पे विषाद को योग कहा गया है। तो दैट इज विषाद योग चैप्टर 1। देन चैप्टर 2 में बात होती है सांख्य योग की। ठीक है, अब चैप्टर 2 में बेसिकली ना पूरा भगवत गीता का समरी है, अगर आप पढ़ें। चैप्टर 2 इज क्वाइट बिग चैप्टर, एंड यहाँ पर कृष्ण जी जो काउंसलर हम बात कर रहे हैं, he try to give the whole summary of the whole भगवत गीता कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आया जाए। ठीक है, तो वो अर्जुन को बताते हैं योग क्या है, यहाँ पर बताते हैं सांख्य योग के अंदर योग एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो वो बताते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी कि इक्वानिमिटी, समत्व होना। समत्व का क्या मतलब है? जो लाइफ की एक्सट्रीम सिचुएशंस होते हैं उसमें कैसे बैलेंस्ड रहना है। ठीक है, सुख दुख में कैसे बैलेंस रहना है, नॉन रिएक्टिव रहना है, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है। दो एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ लाइफ में हमें बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्टेट में नहीं जाना है। ठीक है, मतलब वी हैव टू फॉलो अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, राइट। और उसको कैसे अचीव करते हैं, तो चैप्टर 2 में ही वो श्लोक आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, जहां पर वो कहते हैं अर्जुन कर्म कर और फल की चिंता मत कर। ठीक है, अपने कर्म पे फोकस करो, अपना काम करो और लीव द रेस्ट, अपने आउटपुट अपने रिजल्ट्स को भूल जाओ, मुझ में अर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, जहां पर वो ये बात करते हैं। तो दैट इज चैप्टर 2 ओनली। देन एक्चुअली चैप्टर 3 के अंदर वो कर्मयोग सेल्फलेस सर्विस को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कर्मयोग क्या है। द कंसेप्ट ऑफ निष्काम कर्म, यानी कि आपको कर्म तो करना है लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उस आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस के बिना और अटैचमेंट के बिना, विदाउट गेटिंग अटैच टू द आउटपुट ऑफ योर एक्शंस। तो व्हाट हैपेंस, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली यही थॉट चलता रहेगा हम पास होंगे हम फेल होंगे, तो क्या होगा? क्या हम अपना 100% अपनी तैयारी में दे पाएंगे? क्योंकि हमारा माइंड का एक एरिया तो आउटपुट पे ऑक्यूपाइड है, तो क्या हम अपना 100% डाल पाएंगे अपनी प्रिपरेशन में? नहीं डाल पाएंगे ना। नो मैम। राइट, तो दिस इज व्हाट हैपेंड, यही वो अर्जुन को समझाते हैं। आप सेल्फलेस सर्विस कीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोक संग्रह पे ध्यान दीजिए। लोक संग्रह होता है वहां पे वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम कीजिए। अच्छा, ये जो लोक संग्रह वाला कॉन्सेप्ट आता है भगवत गीता में, ऐसा विवेकानंद जी भी बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक तरीका है सेल्फलेस होने का, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, हम तो काम ही फल के लिए करते हैं, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोक संग्रह, आप
एटलीस्ट सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए, आप कुछ बड़ा कीजिए, आप दूसरों के लिए कुछ कीजिए। जब हम ऐसे वाले मोड में जाते हैं तो ग्रेजुअली विद टाइम हमारे अंदर वो सेल्फलेस नेचर आने लगता है, ठीक है। और जब आपके अंदर वो सेल्फलेस नेचर आने लगता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो आउटपुट के साथ अटैचमेंट होता है ना, वो खत्म होने लगता है, ठीक है। तो दिस इज द फिलॉसफी जो उन्होंने समझाया, सो दैट वन कीप्स ऑन वर्किंग विदाउट गेटिंग अटैच टू द आउटकम। और ये जो अटैचमेंट वाला इशू है ना, यही सबसे बड़ा रूट कॉज है सफरिंग के लिए। अटैचमेंट इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग, ऐसा हम बुद्धिज्म में भी पढ़ते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप अटैच ही नहीं होगे किसी आउटपुट से, देन यू आर ऑलवेज इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस ना। आप अपना 100% अपने काम में दे रहे हो, आपको उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो अलग, राइट। आउटपुट से आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने तो 100% दिया था, ठीक है। तो आउटपुट कैसा भी आता है उससे आप बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने एग्जाम की तैयारी करी पर वो पास नहीं हो पाया, अब दो ही ऑप्शन है, या तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने चले जाता है, जो कि होता है बहुत बार। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट से अटैच हो गया था, उसने सोच लिया था मैं तो पास होऊंगा इस बार, या मैं तो 90%, 99% मार्क्स लेने ही लेने हैं। वो इतना अटैच हो गया था, और वो एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर नहीं आता है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम शैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, क्योंकि जो आउटपुट होता है आपके कर्मों का वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी इक्वली डिपेंड करता है, राइट। लेकिन हमारा कंट्रोल किस चीज पे है? अपने एक्शन पे कंट्रोल है, लेकिन हम सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट है। देन चैप्टर 4 में वो ज्ञान योग की बात करते हैं, दैट इज द रिलीजन ऑफ नॉलेज। तो वो कहते हैं कर्म तो करना है, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म करना है, ठीक है। इस नॉलेज के साथ कर्म करना है कि आपके कर्मों के आउटपुट से आप अटैच ना हो। बात एक ही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कर्म करना और कोई भी कर्म करना है, आपको पता भी तो होना चाहिए आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्यों कर्म कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और अटैचमेंट कब नहीं होगा? जब आपको राइट काइंड ऑफ नॉलेज होगी, जब आपको पता है आपका आउटकम आपके हाथ में नहीं है, जब आपको पता है अगर आप गलत चीज को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, यू आर टारगेटिंग समथिंग विच इज टेम्पररी इन नेचर, ठीक है, आप कुछ ऐसी स्टेट को टारगेट कर रहे हो जो हमेशा नहीं रहने वाली लाइफ में, तो वो चली जाएगी तो फिर आप परेशान होगे, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान सहित कर्म करना है। देन चैप्टर 5 टॉक्स अबाउट कर्म वैराग्य योग, ठीक है। अगेन कर्म वैराग्य योग, वैराग्य इज हेयर काइंड ऑफ नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बात यही हो रही है कि कैसे जो कर्मों का आउटपुट है, उसके जो फ्रूट्स हैं, उसके जो आउटपुट है, उसको त्याग देना है। हो सकता है आउटपुट अच्छा हो सकता है आउटपुट बुरा हो, पर दोनों ही केस में आपको अटैच नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी सक्सेसफुल हो जाती है, आपका जेआरएफ भी क्वालिफाइड हो जाता है, लेकिन अगर आप उस इमेज के साथ अटैच हो जाओगे तो हो सकता है आपके अंदर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आए, ठीक है। बट जरूरी नहीं है सिर्फ वो एक इमेज आपको लाइफ में सारे आपके गोल्स अचीव करा दे, राइट। हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे उस चीज का इफेक्ट पड़े, आपके फ्रेंडशिप पे उन चीजों का इफेक्ट पड़े। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में भी आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उस कर्म का जो फल आता है उसमें भी आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ना ही आपके अंदर वो प्राइड ऑफ डूअरशिप होना चाहिए, कर्ता भाव कि मैंने ये काम किया है। क्योंकि अगर ये जो मैंने आ गया ना, अगर ये अहंकार आ जाता है, तो एक्चुअली जो नॉलेज पार्ट है वहां पे आपका वो स्पॉइल हो जाता है, और वो इट विल लीड टू सफरिंग, यानी कि आप गलत आइडेंटिटी के साथ खुद को जोड़ रहे हो, एंड इट विल ग्रेजुअली लीड टू सफरिंग। देन चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट अभ्यास योग, यानी कि अभ्यास, कोशिश, प्रैक्टिस करने की बात हो रही है। तो ये हाँ जी, यहाँ पर रिलीजन वर्ड क्यों यूज हो रहा है, रिलीजन बाय रिनाउंसिंग फ्रूट्स ऑफ वर्क?
ओके, रिलीजन, अच्छा यहाँ पे इन्होंने शायद इंग्लिश में ये जो लिखा है बहुत लिटरल ट्रांसलेट कर दिया होगा, ठीक है, धर्म के लिए इन्होंने रिलीजन वर्ड यूज करा होगा, अभी बताती हूँ। ये जब भी भगवत गीता में धर्म की बात की जा रही है, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन एट ऑल, ठीक है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा है, तो आई गेस ये जहां से भी लिखा गया होगा तो उन्होंने एज इट इज वर्ड यूज किया है, बट धर्म इज ऑलवेज अबाउट वंस ड्यूटी, वंस वे ऑफ लाइफ, है ना, वंस वे ऑफ लिविंग लाइफ, ठीक है। धर्म हमारे लिए बनाया गया है सो दैट वी कैन हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ जो हमारी लाइफ को आसान बनाता है। वे ऑफ लाइफ की बात धर्म है। धर्म किसी रिलीजन का नाम नहीं है, मतलब इट इज नॉट एट ऑल अबाउट पर्टिकुलर रिलीजन यहाँ पे, ठीक है। इट इज अबाउट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। फॉलोइंग, जब भी बात होती है ना, धर्म का पालन करो ऐसा बोला जाता है ना, अपने धर्म का पालन करो। भगवत गीता में ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही गई है। अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं स्वधर्म का पालन करो। अब ये स्वधर्म क्या है? जो कि तुम्हारा धर्म है। अब तुम्हारा धर्म और मेरा धर्म अलग हो सकता है, क्योंकि मेरा नेचर अलग है, तुम्हारा नेचर अलग है, तुम्हारे स्किल्स अलग, तो आपका धर्म अलग हुआ और मेरा धर्म अलग हुआ, ठीक है। तो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं तुम तो क्षत्रिय हो और युद्ध करना और गलत लोगों को पराजित करना ये तुम्हारा धर्म है, और कभी भी हमें किसी को भी किसी दूसरे के धर्म को फॉलो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये जो लाइन है ना, ये कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन, ये इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें अलग अलग धर्म, मतलब ये जो सो कॉल्ड हम रिलीजन्स को हम जानते हैं आज की दुनिया में, कृष्ण जी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दोज धर्म। वो ये कहना चाह रहे हैं भाई मेरी पर्सनैलिटी अलग है, मेरे स्किल्स अलग हैं, ठीक है। अगर मुझे डांसिंग आता है और तुम्हें सिंगिंग आता है, और अगर मैं गाना गाऊं तो कोई फायदा होगा उसका? विल आई गेट समथिंग आउट ऑफ दैट? लोग मजाक अलग उड़ाएंगे, मैं परेशान अलग होंगी, है कि नहीं? समझ पा रहे हो इस बात को? यस मैम। है ना? तो ये स्वधर्म का कॉन्सेप्ट है। गीता स्टार्ट होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म वर्ड से ही गीता का आरंभ होता है, और गीता जब एंड होती है तो वहां पे आता है मम। मम मतलब मेरा, यानी कि मेरा, और धर्म स्टार्टिंग में धर्म, मेरा धर्म। तो कहते हैं भगवत गीता इज ऑल अबाउट योर धर्म, and dharma is not that religion here. It is not talking about a particular religion. It is talking about your particular, your way of life, which is different for you, which is different for me. Correct? ये समझ आ गया सबको यहाँ पे? Yes ma'am. Okay. So then in chapter 6 it talks about अभ्यास योग, यानी कि आप कैसे प्रैक्टिस करके इस चीज को अचीव कर सकते हैं, because it doesn't seems to be easy. Then chapter 7 talks about परमहंस विज्ञान योग, यानी कि wisdom from realization. So wisdom उस ज्ञान को बोलते हैं जो खुद के एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। There is a difference between knowledge and wisdom. So whatever you experience, जब आप धर्म के पथ पे चलते हैं, कर्म योग का पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, बार बार लोक संग्रह करते हैं, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आप पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, और जब एक्सपीरियंस करते हैं तब वो आपका विजडम बनता है, ठीक है। देन चैप्टर 8 इज अबाउट अक्षर पर ब्रह्मांड योग, रिलीजन बाय डिवोशन टू वन सुप्रीम गॉड। यानी कि यहाँ पर अब हम चैप्टर 7 से हम भक्ति योग में एंटर कर चुके हैं, राइट। तो भक्ति योग में एंटर जब हम करते हैं तो हम वहां बात करते हैं डिवोशन की, सरेंडर की, ठीक है, टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स योर ओन ट्रू सेल्फ, ठीक है। जो अद्वैत फिलॉसफी होती है वो क्या कहती है कि कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, कोई ईश्वर भी अलग नहीं है, सब एक ही है, ठीक है। अद्वैत, कोई दो नहीं है, सब एक ही है, राइट। तो अगर हम उस तरीके से इसको जाने और समझें, तो जब हम डिवोशन की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं देयर इज वन सम सेपरेट आइडेंटिटी और हम उसी की तरफ डिवोट हो। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन अ वे दैट वन कैन डिवोट और सरेंडर इट टुवर्ड्स one's true self,
ठीक है, टूवर्ड्स दैट सुप्रीम पावर विद इन, हमारे अंदर जो वो शक्ति है, ठीक है, हम उस पावर को डिवोट कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। बिकॉज एज आई हैव टोल्ड, एवरीथिंग जो होते हैं लाइफ के सारे जितने पैरामीटर्स होते हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। ये नेचर हमने नहीं बनाया है, सूरज चांद तारे ये सब हमने नहीं बनाया है, तो दैट मीन्स देयर इज सम इंटेलिजेंस वर्किंग आउट देयर, राइट। तो एट टाइम्स अपना हमें सरेंडर भी करना पड़ता है, हमें उस नेचर को प्रणाम भी करना पड़ता है जो कि हमारे इंटेलिजेंस के बियॉन्ड है, राइट। सो देन हियर कम्स राज विद्या गुह योग। ये हम बात करते हैं यहाँ पे मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस की, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिटेशन भी प्रीच करते हैं कि कैसे आप खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देन विभूति विस्तार योग, तो यहाँ पर हम डिवाइन मैनिफेस्टेशंस की बात हुई है। विभूति विस्तार आई गेस, अच्छा 11 में है विश्व रूप दर्शन। आई वाज वंडरिंग कि चैप्टर 10 में। ठीक है, तो चैप्टर 10 में अगेन हम क्योंकि भक्ति योग के अंदर हैं, तो जो इटर्नल सेल्फ की हम बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम पावर या सुप्रीम इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात इसमें की गई है। देन चैप्टर 11 में विश्व रूप दर्शन योग, यानी कि विश्व रूप विराट रूप, कृष्ण जी अर्जुन को अपना विराट स्वरूप, अपना कॉस्मिक विजन प्रोवाइड करते हैं उसको, एंड ही पोर्ट्रेज द विराट स्वरूप, ठीक है। दिस पर्टिकुलर phenomena is also has been compared with the concept of hypnotherapy। तो जो हिप्नोथेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है जो हम आजकल अप्लाई करते हैं, उसके साथ इस विश्व रूप दर्शन को कंपेयर किया गया है इन द लेटेस्ट रिसर्चेस। क्योंकि अर्जुन वाज लाइक ऑ स्ट्रक, उन्होंने जो विश्व रूप देखा, ही वाज सो ऑ स्ट्रक दैट कॉन्स्टेंटली इंस्टेंटली उनके अंदर वो डिवोशन, वो सरेंडर आ जाता है, ठीक है। ही एक्चुअली सरेंडर्स एट दैट पॉइंट कंप्लीटली टू लॉर्ड कृष्णा, राइट। अगर हम काउंसलिंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर भी आपने नोटिस किया होगा, इट इज इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट आपकी बात माने, फॉलो करे। और जब तक क्लाइंट उस स्टेज पे नहीं आता है कि वो आपकी कही भी हर बात माने, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द क्लाइंट टू गेट हील्ड। एम आई करेक्ट है? ऐसा होता है? यस मैम, जैसे कि साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्रॉइड का है, उसमें ट्रांसफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। जब तक वो ट्रांसफरेंस नहीं आएगा क्लाइंट की तरफ से, तब तक आगे ट्रीटमेंट पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट राइट। तो जब तक वो क्लाइंट का एक होता है ना, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो जाता है आपके ऊपर, वो रेडी टू गिव इन नहीं है, आप जो कह रहे हो वो आपकी हर बात फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रीटमेंट टू प्रोसीड फर्दर, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है। देन चैप्टर 12 इज पर्टिकुलरली भक्ति योग, जहाँ पे योगा ऑफ डिवोशन की बात की गई है, एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना हैज लॉट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, ठीक है। हमारे संस्कृति की हम बात जब करते हैं, तो जब भी हम डिवोशन की बात कर रहे हैं, सरेंडर की बात कर रहे हैं, इट हैज लॉट ऑफ हीलिंग बेनिफिट्स, क्योंकि वी कैन नॉट हैंडल लॉट ऑफ कॉग्निटिव लोड, वी हैव अ लिमिटेड लाइक, अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में बात करें तो वो जो 10% कॉन्शियस सरफेस पर जो माइंड है ना, दैट इज वेरी लिमिटेड, और बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड हैंडल नहीं कर सकता है। तो एट टाइम्स दिस सरेंडर, दिस डिवोशन इज नेसेसरी। ओके, देन वी हैव क्षेत्रज्ञ विभाग योग। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, बट हाँ इतना हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण जी बहुत ही क्लियरली कहते हैं क्षेत्रज्ञ कौन है। क्षेत्र वो कहते हैं जो हमारा पूरा शरीर है ना, ये क्षेत्र है। और लड़ कौन रहा है उस कर्म भूमि में? कौन है जो युद्ध लड़ रहा है? वो हम है, वो एक्चुअली हम है। जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, अर्जुन की तरह हमारे साथ भी तो यही होता है। और हम किससे लड़ते हैं? हम खुद से ही लड़ते हैं, हम ही लड़ते हैं। और किससे लड़ रहे हैं? हमारे अंदर जो भी वो जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, हम उनसे लड़ाई कर रहे होते हैं,
ठीक है, तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें एक्चुअली वो टारगेट करते हैं डायरेक्टली मैटर और स्पिरिट के बीच में। देन विभाग गुणत्रय विभाग योग, यहाँ पर बात करते हैं सेपरेशन फ्रॉम द क्वालिटीज, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुणा है वो भी इन चैप्टर्स में आना शुरू हो जाता है। और जैसे कि हमने सांख्य फिलॉसफी में ऑल्दो डेमो क्लास में पढ़ा था, बट फिर भी सांख्य फिलॉसफी में बात होती है दैट वी ऑल आर ड्रिवन बाय थ्री गुनास। ठीक है, हमने भगवत गीता में भी थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में, त्रिगुणास की हम बात करते हैं। हम सब प्रकृति से बने हैं, प्रकृति पुरुष के जब कांटेक्ट में प्रकृति आती है तो मैनिफेस्टेशन होता है, बुद्धि आती है, अहंकार आता है, त्रिगुणा का नेचर होता है और उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। ठीक है, तो हमारा जो बिहेवियर है, जो क्वालिटीज हैं, उस त्रिगुणा से ड्रिवन है, राइट। और लेकिन जब हम इस रहस्य को समझने लगते हैं दैट हाउ वी आर सेपरेट फ्रॉम दोज क्वालिटीज, हमारा जो अल्टीमेट गोल है ना वो उन क्वालिटीज से भी फ्री हो जाना है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। देन चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग, योग ऑफ सुप्रीम पुरुष। तो यहाँ पर बात हो रही है अगेन हाउ कैन वी एज दैट स्टेज ऑफ सुप्रीम बीइंग, हम कैसे उस सेल्फ रियलाइजेशन वाले जा सकते हैं। देन चैप्टर 16 इज देव असुर संपद विभाग योग, यानी कि डिवाइन और अनडिवाइन, ये दो जो चीजें हैं। देव, इसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो देविक शक्तियां और जो एक देव होता है, एक दानव होता है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल भाषा में पॉजिटिव थॉट्स, एनर्जीज और नेगेटिव थॉट्स और एनर्जीज, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन दोनों, जैसे आपने अभी बोला था कि हमारे अंदर ही डायलॉग चलता है, एक एंजल वाला और एक डेविल वाला, तो बिल्कुल सेल्फ के अंदर जो नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हैं उनको सेपरेट करना, हाँ, उनके बारे में बात हुई है। देन श्रद्धा विभाग योग, योग ऑफ थ्री फोल्ड फेथ। तो यहाँ पर अगेन 3 नेचर ऑफ फेथ की बात होती है। जैसे हमने बताया ना, हम सब कुछ 3 गुना से ड्रिवन है, तो इवन द डिवोटीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कुछ तामसिक डिवोटीज होंगे जो तांत्रिक चीजें करते हैं, है ना, कुछ सात्विक डिवोटीज होते हैं जो नॉर्मल पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, और कुछ डिवोटीज पैशन वाले भी होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअली बहुत कड़ी तपस्या भी करेंगे, उस तरीके के। तो देर आर कैटेगरीज अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटीज ऑफ द गुनास। एंड अल्टीमेटली मोक्ष उपदेश योग, जहां पर बात होती है कि भाई जब when you follow all of these, जब आपको ये पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है, then there will be a point जब आप लिबरेशन की तरफ, रिनंसिएशन की तरफ जा सकते हैं। और लिबरेट किससे होना है? लिबरेट किससे होना है? ये अपना ही, ये जितना जो मेंटल केओस हमने क्रिएट करा है उससे लिबरेट होना है, राइट। ये जो बाउंडेशंस हैं माइंड की, ये जो हमारे, जो हम कहते हैं ना बॉन्डेज ऑफ एक्शन, कर्मयोग में भी बात आती है, बॉन्डेज ऑफ एक्शन से लिबरेट होना है। बॉन्डेज ऑफ एक्शन क्या है? हमें लग रहा है वो हम एक चेन है, आपने एक काम कर्म किया, ठीक है, उसका कुछ आउटपुट निकला, जैसे हमने बात करी, आपने एग्जाम की तैयारी करी, फिर आपका रिजल्ट आया, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या होगा? आपके अंदर एक नेगेटिव चेन बन गई, अरे ये तो बहुत मुश्किल एग्जाम है, क्लियर करना बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, कैसे होगा। इस बारे में सोचते सोचते जब अगली बारी आई एग्जाम की, तो आपने इसी टेंशन में टाइम निकाल दिया और अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम फिर आप पेपर देंगे और फिर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो रहा है? कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है इसके अंदर? इट इज बॉन्डेज ऑफ योर ओन एक्शन, बॉन्डेज ऑफ योर ओन कर्मा। Are you getting this? Yes, ma'am. Ma'am, it is all about the conflict of our mind. Right. So हमें इससे लिबरेट होना है. We have to understand this cycle and we have to break that cycle. ये जो पैटर्न है, इसी को हम बोलते हैं संस्कार। हमारे संस्कार हम खुद ही बनाते हैं, बट जब हम खुद बना रहे हैं तो हम खुद तोड़ने की एबिलिटी भी रखते हैं। बट अगर हम अवेयर नहीं होके रहते हैं, वी आर नॉट माइंडफुल ऑफ आवर एक्शंस, ऑफ आवर वर्ड्स, ऑफ आवर थॉट्स, अगर हम माइंडफुल होके नहीं रहते हैं तो क्या होता है? वी गेट ड्रिवन बाय दीज, और हमें लगता है देयर इज सम एक्सटर्नल पावर जो हमारी लाइफ कंट्रोल कर रही है। क्लियर है ये? रिनंसिएशन इज व्हाट? रिनंसिएशन इज मतलब जो कहते हैं ना, रिनंस हो जाना, जब कहते हैं ना दुनिया छोड़ दी है हमने, रिनंस हो गए हैं।
जनरली ये साधुओं के लिए यूज होता है वर्ड कि वो जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, बट अगेन गीता में बहुत क्लियरली कृष्ण जी बताते हैं रिनंस, हाँ संन्यास बोला जाता संन्यास वाला हाँ एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी कृष्ण जी बताते हैं, अर्जुन पूछते हैं अरे संन्यास, कभी आप कह रहे हो संन्यास अच्छा है, कभी आप कह रहे हो कर्म अच्छा है, तो मैं कौन सा पाथ फॉलो करूं? तो वो खुद बताते हैं संन्यास से काफी लेटर ऑन आती है स्टेज, पहले आप कर्म की स्टेज फॉलो कीजिए। ग्रेजुअली जब आप कर्म करते चलेंगे, कर्म योग के माध्यम से निष्काम कर्म योग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिनंसिएट ऑटोमेटिकली। और रिनंसिएशन ऐसा नहीं है पहाड़ों पे जाके होना है, आप यहीं पर इसी वक्त रिनंसिएट हो सकते हैं। पर आप नॉन अटैच्ड है, अनासक्ति भाव है, समत्व भाव है, तो आप रिनंसिएट है। क्लियर है? यस मैम। मैडम रेनकार्नेशन मतलब वही होगा क्या? री इनकारनेशन या रिनंसिएशन? नहीं नहीं, री री इनकारनेशन अलग वर्ड है, वो डिफरेंट है। हाँ दैट इज पुनर्जन्म। री इनकारनेशन इज पुनर्जन्म। ओके ओके। हाँ मैम इसमें जो 4th वाला चैप्टर है, लास्ट वाले, उसमें जना योगा लिखा है। ज्ञान, ज्ञान वो लिखते हैं इंग्लिश में, जब है ना उसको कन्वर्ट Okay. करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, दैट इज ज्ञान योग। मैम हम लोग के एग्जाम में हम्म, जैसे ये तो मैं समझ गई कि हर चैप्टर का क्या मीनिंग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट क्या सीरीज भी आ सकती है कि मतलब हमें ऑर्डर करना है करेक्ट उसमें हाँ आ चैप्टर सकता है, मीनिंग्स को, आ सकता मतलब है, इसको रटना पड़ेगा? हाँ आ सकता है, बट इसको लॉजिकली समझ के करना, बिकॉज एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछा गया है जो कि मैं अभी आज की क्लास में तो डिस्कस नहीं करूंगी, अदरवाइज वो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं उसको वीकेंड पे ले लूंगी, संडे को, उस क्वेश्चन को। ठीक है? तो वो कुछ ऐसा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ चैप्टर के नाम रटने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने कॉन्सेप्चुअली पूछा है उस क्वेश्चन को, यानी कि आपको उसमें कंसेप्चुअली मेरे साथ हाँ पर्सनली प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन जहाँ डेट्स याद करनी है या फिर मुझे याद करना है कि पहले कौन सा चैप्टर है और उसके बाद कौन सा, मतलब ऑर्डर याद करना है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं नहीं, इसको कॉन्सेप्चुअली वैसे तो इट इज बेटर चैप्टर के नाम भी अगर थोड़ा सा ध्यान में रहे, अगर थोड़ा सा सीक्वेंस और रट्टा फाइन, अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करोगे ना कि किस चैप्टर में क्या बात हुई है कहानी की तरह, तो व्हाट यू कैन डू ना, भगवत गीता का समरी पढ़ना एक बार, सिर्फ समरी ऑफ चैप्टर्स, इट वोंट टेक मच टाइम, जब भी टाइम मिले, जब भी मन करे, जस्ट समरी ऑफ चैप्टर पढ़ना, तो उससे क्या होगा, यू विल हैव अ व्यू, ओवरव्यू, लाइक अ स्टोरी इन योर माइंड, सीक्वेंस अपने आप बन जाएगी माइंड के अंदर। ओके मैम। ठीक है? कि कब अर्जुन ने क्या बोला, कृष्ण जी ने क्या बोला, सिर्फ एक ओवरव्यू पढ़ना, कहीं समरी दे रखी होगी चैप्टर वाइज, ट्राई टू गो थ्रू दैट वंस, तो इट विल हेल्प यू टू हैव दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड, ताकि रट्टा ना मारना पड़े। ओके मैम। ठीक, ओके, आई गेस ये मैं समझा चुकी हूँ अभी, कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग। ठीक है? देन राजयोग, ये मेडिटेशन वाला योग है, ये भी बीच में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो वो एक पाथ ऑफ मेडिटेशन बताते हैं। हाँ जी मैम कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग है ना थर्ड वाले का पार्ट, या ज्ञान योग है? ज्ञान, ज्ञान है, ध्यान नहीं, अच्छा मुझे लग रहा था। नहीं ओके ठीक। नहीं, इट्स ज्ञान योग। ये राजयोग है एक और, जो बेसिकली इसको आप ध्यान योग भी कह सकते हो, राजयोग को। ठीक है? ये चैप्टर अलग से नाम इतना नहीं दिया गया है, बट दिस इज अबाउट मेडिटेशन, जहाँ पे एक्चुअली वो बताते हैं कि भाई ये कैसे, जब अर्जुन पूछते हैं मैं कैसे करूं, ये तो बड़ा ही मुश्किल है, अपने मन को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल करना, टू कंट्रोल आवर माइंड इज वेरी डिफिकल्ट, तब वो बात करते हैं मेडिटेशन की। यू जस्ट हैव टू सिट straight in a calm state, focus on your breath, focus on your bhrumadhya in the middle of your eyebrows, तो वहां पे आप ध्यान, तो आप अपने माइंड को स्टिल कीजिए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन जो वो एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम राजयोग भी कहते हैं गीता में। ठीक है? देन देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुणा, जो दैट इज, देर आर 3 काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। ठीक है? Sattvic is more calm and clear. Rajas is like very passionate, aggressive, you can say, passionate, aggressive, restlessness,
and tamasic is like lazy and like all that kind of dullness, solidity, ये सारा तामसिक में आता है. And our main aim according to Bhagavad Gita is to get free from all of these. ठीक है, और फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दीज आने के लिए हमें पहले सात्विक तक पहुंचना पड़ता है. लाइक मेजॉरिटी ऑफ पर्सनालिटी शुड बी ऑफ सात्विक, उसके बाद इट विल बी इजी फॉर अस टू गेट फ्री फ्रॉम दिस ऑल्सो. अदरवाइज वन हैज टेंडेंसी टू गेट अटैच्ड विद एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. मैम Right. जो वर्ल्डली प्लेजर से अटैचमेंट होता है वो राजसिक में आएगा ना, या तामसिक में आएगा? राजसिक में, वर्ल्डली प्लेजर्स वाला राजसिक में. ओके. तामसिक में ज्यादातर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं. किसी दूसरे को हार्म करना, मारना, खुद को हार्म करना, वो सब तामसिक है. लेजीनेस तामसिक है. राजसिक इज ऑलवेज अबाउट एक्टिव, पैशनेट, एम्बिशियस, है ना, थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड है, प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी है, दैट इज राजसिक. सात्विक इज मोर बैलेंस स्टेट, इट इज मोर प्योर स्टेट वेयर वी एक्चुअली फील लाइफ. ठीक है. Okay, so this is in general about the universe, equilibrium of universe, which is composed of all the three gunas, rajas, tamas and sattva. Okay, universe has three functions overall. Universe is created, it is preserved, and finally it is destructed also. And there are three factors in the universe: time, space and causation. ठीक है. देयर इज दीज थ्री कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्स में रहते हैं. एक टाइम का कॉन्सेप्ट जहां पर रिलेटिविटी बहुत है, एक स्पेस का कॉन्सेप्ट, और एक कॉजेशन क्या, कि कोई चीज मतलब कहते हैं ना, किससे क्या निकला, पहले क्या आया फिर बाद में क्या आया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हमारा यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट होता है. मैम ये फिर से समझा दीजिए. हाँ जी. तो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की. ठीक है. यूनिवर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल थ्री कॉन्सेप्ट्स. फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, हम बात करें क्रिएशन, यानी कि यूनिवर्स क्रिएट हुआ पहले. प्रिजर्वेशन, यानी कि अभी भी यूनिवर्स प्रिजर्व हो रहा है, चल रहा है. देयर विल बी अ टाइम, ऐसा कहा जाता है, जब ये सब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. कहते हैं ना, लाइक इन द इंडियन फिलॉसफी हम कहते हैं, अरे पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया. ठीक है. स्टार्ट हुआ, प्रिजर्व हुआ, फिर डिस्ट्रक्ट हो गया. लाइक दिस, समझ लो. ओके मैम. द फंक्शनल कॉन्सेप्ट त्रिगुणा, आई गेस यू अंडरस्टैंड. त्रिगुणा क्लियर है मैम? ठीक है. देन थ्री फैक्टर्स, देयर इज वन मोर फैक्टर, टाइम. हम यूनिवर्स को टाइम के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, और कॉजेशन के. हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं ना, यूनिवर्स कैसे बना, हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं. कोई होल था, वो एक्सपैंड हुआ, फिर ये चीजें निकली, फिर सोलर, मतलब हमारा पूरा गैलेक्सी हम बात करते हैं. फिर हम कहते हैं अच्छा आदि मानव आए, फिर ये हुआ, फिर इंडस सिविलाइजेशन हुआ. हम कॉजेशन पढ़ते हैं पूरा, किससे क्या हुआ अल्टीमेटली. क्लियर है? ओके. यस. अगेन गीता डिस्क्राइब अबाउट स्वधर्म एंड स्वभाव. ये वन क्वेश्चन, ये जो थ्री गुनाज है, इसमें आपने कहा था कि तीनों को छोड़ के आगे निकलना है. राइट. तो इसमें सत्वा का, जैसे आपने बताया, एकदम रिलैक्स्ड और बैलेंस्ड है. राइट. तो उससे भी बाहर जाना है. हाँ, एक्चुअली क्या है, ये बिल्कुल हायर स्टेट की बात हो रही है. लाइक सात्विक कह सकते हो, इट इज एन आइडियल स्टेट अभी के लिए, क्योंकि वहां तक पहुंचना भी फिलहाल मुश्किल हो जाता है. उससे बाहर जाने का मतलब ये है, वो बात कर रहे हैं अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ की. ठीक है. और अल्टीमेट गोल इज लाइक हम सबसे ही फ्री हो गए. वो जो कॉन्सेप्ट आता है ना कि वी आर फ्री फ्रॉम दिस बॉडी, वी आर फ्री फ्रॉम दिस माइंड, और वी आर फ्री फ्रॉम दिस यूनिवर्स. मतलब उस वक्त हमारा एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा. ये जो हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है ना सेल्फ की, ये ही खत्म हो जाएगी. दैट इज दैट टाइम जब हम कह रहे हैं ना उससे भी रिलीज हो जाना है. पता है अदरवाइज क्या होता है,
वी ऑल हैव टेंडेंसी, अगर आप सात्विक एटीट्यूड की भी बात कर रहे हो, सात्विक गुणों की, पर्सनैलिटी की बात करते हो, तो हम उससे भी अटैच हो जाते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा हम अटैचमेंट फील करने लगते हैं। ठीक है, हमें वो ही चाहिए, हमें इसी तरीके से रोज इस वक्त मेडिटेशन करना है, और अगर वो नहीं होता है तो हमें परेशानी है, या फिर कोई और इंसान आपके सामने आ रहा है और वो जो आप फॉलो करते हो वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको उससे भी परेशानी है। दैट इज अ स्टेट ऑफ अटैचमेंट। आप पर्सनालिटी हुआ बट ग्रेजुअली वो चीज आपको बांधने लगती है। ऐसे बहुत सारे साधु और ऋषि मुनि होते हैं जो बहुत सिद्धियां प्राप्त करते हैं, बट क्या होता है, उनको ग्रेजुअली अपनी ही पावर्स के साथ अटैचमेंट होने लगता है, उन्हीं सिद्धियों के साथ अटैचमेंट होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए बात की जाती है, अल्टीमेट जो गोल है हमारी लाइफ का वो है कि इन सबसे ही हमें फ्री हो जाना है। अब इन सबसे फ्री हो जाने का मतलब अभी ये नहीं हम समझ सकते कि हाँ इस लाइफ में रहते हुए हम सबसे फ्री हो गए हैं, बट एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं कि हम टूवर्ड्स थोड़ा एक बैलेंस क्रिएट करें अपनी लाइफ के अंदर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली। बैलेंस इन द सेंस मैम, किस चीज का बैलेंस? ये तीनों गुनास का बैलेंस? हाँ, तीनों गुनास नहीं, जब हम बात करते हैं थ्री गुनास की, यस हमें इसमें भी बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, बट देयर इज चांसेस कि हम सात्विक पर्सनालिटी की तरफ अगर हम ज्यादा जाते हैं तो इट इज बेटर। इस बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कमेंट कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एन वेरी वेरी एक्सपर्ट इसके एक्सपीरियंस वाइज, क्योंकि मेरे को भी ये फिलोसफिकली ही पता है अभी। एक्सपीरियंस जब जिस दिन करूंगी तो आई कुड हैव बीन एक्सप्लेन यू द बेटर थिंग्स इन अ बेटर मैनर। ठीक है, राइट मैम। तो ये इतना मुझे पता है कि हम सब में ये तीनों पर्सनालिटीज होती हैं, और विद टाइम इट कीप्स चेंजिंग। हो सकता है अभी मेरे में जो रेशो हो वो अलग हो, और कल मेरे में यही रेशो चेंज हो जाए। तो विद टाइम, विद सिचुएशन, इट इवन कीप्स चेंजिंग एंड फ्लक्चुएटिंग। अब उस फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारा बिहेवियर, हमारा मेंटल बिहेवियर, हमारा फिजिकल बिहेवियर भी फ्लक्चुएट होता है। तो एटलीस्ट अगर हम इन पे थोड़ा सा कंट्रोल अगर लगा पाते हैं, थोड़ा कंट्रोल ला पाते हैं, तो हम अपनी राजसिक और तामसिक पावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डोमिनेंस में है ना हमारा, लाइक 60% इज सात्विक, बाकी 20-20 रजस एंड तामस। अगर इट इज मोर सात्विक तो रजस पे और तमस पे, दोनों पे सात्विक का प्रभाव पड़ेगा। और हम जो तामसिक की एनर्जी है ना, तामसिक की है लिथार्जी वाली या फिर सॉलिडिटी वाली एनर्जी है, तो अगर हम उस एनर्जी को सात्विक के हिसाब से चैनलाइज कर सकते हैं। आप सॉलिडिटी के कॉन्सेप्ट को डिटर्मिनेशन की तरह भी तो यूज कर सकते हो, किसी एक चीज पे दृढ़ निश्चय करके अड़े रहना। वो आ रहा है तामसिक से, लेकिन आपके उस तामसिक क्वालिटी के ऊपर सात्विक इन्फ्लुएंस आ रहा है। राइट। मतलब मैम इसका एक नटशेल में अगर मैं समझूं तो इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में हमको इन तीनों गुनास का बैलेंस करके चलना जरूरी है। जैसे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो पीपल विल टेक फॉर ग्रांटेड, काइंड ऑफ आई एम सेइंग। अगर हम बहुत हद से ज्यादा सबमर्ज्ड और सप्रेसिव बन के रहेंगे तो पीपल विल कम ऑन अस। राइट। यानी सब चीजों, यही चीजों को बैलेंस करके पूरी लाइफ जीनी है। राइट। तो मुझे इतना समझ में आता है, अगेन इट इज मोर ऑफ अबाउट अवेयरनेस। अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो, जैसे आपने एग्जांपल दिया, बट आप अवेयर होके कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, यू आर बीइंग वेरी मच अवेयर, तो आप उस गुस्से के साथ अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करोगे। राइट, मींस अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट अबाउट ईच एंड एवरी गुनास। राइट। ठीक है, तो आप यू वोंट लूज योरसेल्फ। अदरवाइज क्या होता है, हमें गुस्सा आता है और हम बह जाते हैं, मतलब वी इवन वो सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी हो जाती है ना। जो गुस्सा हमें परेशान करे वो गुस्सा यानी कि हमने गड़बड़ कर दी है, हम अवेयर होके नहीं कर रहे थे। राइट, इट इज समथिंग लाइक दैट। वी कैन से कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम पहचाने कि एट प्रेजेंट हमारी लाइफ में क्या चीज ज्यादा डोमिनेंट हो रही है राजसिक तामसिक में, और उस पर हम सात्विक का प्रभाव लाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली।
हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि सात्विक ऑब्वियसली कहते हैं बेटर स्टेज है रजस और तमस से, तो बट अगर सात्विक का अगेन जैसे मैंने बताया अगर रेशो ज्यादा होगा तो आप रजस और तमस को चैनलाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और मैम जैसे आपने कहा कि सत्व जो है उससे भी बाहर होना है, जो स्टार्टिंग में जैसे हमने हाँ शुरू हाँ किया, हाँ हाँ। तो इससे भी जो बाहर होना है मतलब तो जो सात्विक से जब वो बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है हम गेट खोल के बाहर चले जाएंगे तो सात्विक नहीं, से फ्री हो डेथ को नहीं जाएंगे। जाता है ना वो, हाँ जी, कि वी हैव टू लिव द लाइफ एंड कम आउट ऑफ इट, ऐसा बोल रहे राइट, हैं ना आप? अटैच वो नहीं होना है। हाँ, हाँ, सिंपली अभी इतना समझ सकते हो कि वो अटैच नहीं साइकिल में होना है। चलना है। राइट, उस राइट, सात्विक से भी अटैच नहीं होना है, आप ये समझ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू, समझा मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, आई गेस स्वधर्म और स्वभाव, ये मैंने शायद थोड़ा बता दिया था आपको। स्वभाव इज जो मेरा ट्रू नेचर है, ट्रू स्किल है, दैट इज मेरा स्वभाव, और उस स्वभाव के हिसाब से जब मैं काम करूंगी तो वो मेरा स्वधर्म है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस मैम। और अगर मैं अपने स्वभाव के हिसाब से अपना काम नहीं करूंगी तो मैं लाइफ में डिससैटिस्फाइड रहूंगी, मैं खुश कैसे रह पाऊंगी, राइट? यस मैम। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो गीता में भी ये इंद्रिया, सेंसेस, मनस, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, आत्म, सेल्फ, ये सारे टर्म्स का यूज हुआ है, इन सबकी बात हुई है, जिसको हम योग वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अगेन व्हेन डिजायर एंड इमोशन ओवरपावर द इंटेलिजेंस एंड विजडम, ये भगवत गीता में ही बात की जाती है। जब हमारी इच्छाएं, व्हेन डिजायर्स एंड इमोशन, ठीक है, जो हमारे भाव आ रहे हैं वो हमारी विजडम और इंटेलिजेंस को ओवर पार कर देते हैं, व्हेन दे ओवर पार, ठीक है, किसको? हमारे ज्ञान को, हमारी डिस्क्रिशन की पार को, विवेक की शक्ति को, सही गलत में निर्णय लेने वाली शक्ति को जब हमारा इमोशन ओवर पार कर जाता है तब अटैचमेंट प्रोड्यूस होता है। और जब अटैचमेंट, हाँ जी, जब हार्ट और हेड में हम हार्ट की सुनने लगे तो हाँ, अटैचमेंट है। तो वी हैव सम काइंड ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, किसी उसका ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट कोई भी हो सकता है, तो वी हैव सम काइंड ऑफ अटैचमेंट। और अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, वी हैव सर्टेन डिजायर्स, अगेन वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, और जब हमारी डिजायर पूरी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम वॉट एवर वी विल डिजायर वो पूरा हो जाएगा, अब जब हमारी डिजायर पूरी नहीं होती है तो फिर हमारे अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है। क्लियर है? ये चेन समझ आ रही है ना? यस मैम। इसलिए भगवत गीता में निष्काम कर्म की बात करी है। निष्काम, निश मतलब बिना, काम मतलब डिजायर, बिना किसी डिजायर के कर्म करो, तब वो इसलिए बात करते हैं निष्काम कर्म की, क्योंकि डिजायर से क्या हो रहा है, डिजायर से आपका जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है, अटैचमेंट जनरेट होता है, अटैचमेंट से आपका जो फर्दर जो डिजायर है, और अगर वो पूरा नहीं होता है, आउटपुट नहीं मिलता है, तो आपके अंदर गुस्सा जनरेट होता है, फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है, और ऑब्वियसली ये चेन पूरा रिपीट होता रहता है, एंड वी गेट स्टक इन दिस। क्लियर है ये? ओके, ये वाला जो चार्ट है, आई एम स्किपिंग दिस चार्ट हेयर, ठीक है, ये वाला हम जब हम अगेन सेल्फ का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में, तब मैं इसको दोबारा लेके आऊंगी। आज के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ से रिलेटेड है, तो आई टेक दिस कॉन्सेप्ट देयर, सेल्फ वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस पुरुष प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्लास में। एंड आई गेस ये दिस वी हैव डिस्कस्ड। अगेन भगवत गीता ने बार बार फोकस किया है, री एम्फसाइज किया है कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये रास्ते हैं, माध्यम है, मीडियम है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल पाथ्स एंड दीज ऑल पाथ्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, कोई एक दूसरे से इंफीरियर या सुपीरियर पाथवे नहीं है। Now this chart is also very interesting and important for you.
ऐसा अक्सर प्रिडिक्ट किया, एक पिक्चराइज किया गया है भगवत गीता के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आप 4 हॉर्सेस देख सकते हैं, दीज आर 4 हॉर्सेस, बट आई गेस द पिक्चर मस्ट शुड हैव 5 हॉर्सेस, बिकॉज these horses are referring to your 5 senses. So there must be one more horse in this picture, and all these 5 horses are indicating our 5 senses. ठीक है, हम 5 सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चाहे हमारा वो टेस्ट बर्ड हो, हमें हमेशा कुछ टेस्टी खाने का मन करेगा, ठीक है, लाउड म्यूजिक सुनने का मन कर सकता है कभी, या बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने का भी कर सकता है, हमें आंखों से कुछ देखना है, हमें इंस्टा चलाना है, हमें यूट्यूब, तो समझ रहे हो, दीज ऑल आर आवर सेंसेस। हमें कुछ अच्छा टच चाहिए, तो ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारी डिजायर ड्रिवन करते हैं। हमारी डिजायर इन सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई करने की तरफ भागती रहती है हमेशा, ठीक है। नाउ हम सबको पता है इन्हें हमें कंट्रोल करना है। नाउ हाउ दिस कैन बी डन, दिस इज ये जो आप देख सकते हैं, द रिंग्स इनको हम बोलते हैं, क्या बोलूं मैं इनको, जो अगर नॉर्मल सी भाषा में जिस डोर से, है ना, हाँ, लगाम इज द करेक्ट वर्ड, जिस लगाम से इनको खींचा जा रहा है वो लगाम बुद्धि की है, ठीक है। तो वो बुद्धि की लगाम है, सॉरी गलत, हाँ, बुद्धि के हाथों में वो लगाम है, और वो लगाम है हमारे मन की, हमारे माइंड की, ठीक है। हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो सेंसेस ड्रिवन है। अभी मन कर रहा है, अरे यार क्लास छोड़ देते हैं ना, आज क्लास नहीं लेते हैं, कल ले लेंगे, रिकॉर्डिंग से काम चला लेंगे। क्या है? मन भ्रमित होता है। आज सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, आज योगा क्लास छोड़ देते हैं, तो ये क्या है? हमारा मन है, ठीक है। कहाँ जा रहा है? डिजायर की तरफ। कौन सी डिजायर? कंफर्ट वाली डिजायर, ठीक है। तो उसकी तरफ भागता है हमारा मन। तो हमारा मन और ये आगे सेंसेस रहते हैं हमारे। देन हमारा मन कौन कंट्रोल करता है? लेकिन बुद्धि। तो इस पिक्चर में, पूरी पिक्चर में सारथी कौन था? कृष्ण जी, जो गाइड कर रहे थे। तो बुद्धि का रोल फिलहाल वो निभा रहे हैं यहाँ पे। तो बुद्धि इज योर इंटेलेक्ट, विवेक, डिस्क्रिशन पावर, जो आपको सही गलत का निर्णय लेने में मदद करती है। आपको पता है दैट जंक फूड इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन फिर भी एट टाइम्स हम जाते हैं एंड वी एंजॉय दैट जंक फूड। क्यों? क्योंकि हमारा मन करता है। क्यों? क्योंकि हमारी राइट। बट हमारी बुद्धि क्या कहती है? हमारी बुद्धि को अच्छे से पता है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सही और गलत में अंतर करना बुद्धि जानती है, और बुद्धि के माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। दबाना नहीं है, सप्रेशन नहीं करना है, उसको समझाना है, बताना है सही और गलत क्या है और क्यों है, आपके लिए बेहतर क्या है। तो बुद्धि से मन कंट्रोल होता है, और मन से फिर सेंसेस को कंट्रोल में लिया जाता है, राइट। नाउ बुद्धि किसकी है? आपकी है। आप कौन हो? सोल, द स्पिरिट इनसाइड, द एक्चुअल, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रू आइडेंटिटी आपकी, ठीक है। तो यू आर द रियल सेल्फ। आप इसको सेल्फ समझ लो, अगर सोल भी नहीं समझना है तो द एक्चुअल सेल्फ इज यू, ठीक है। सेल्फ किसकी मदद से आगे बढ़ रहा है? बुद्धि की मदद से माइंड को कंट्रोल कर रहा है, और माइंड से फिर आपके सेंसेस कंट्रोल हो रहे हैं। आगे जो रोड है वो आपकी लाइफ की सिचुएशंस है। लाइफ में जो जो सिचुएशंस आती है वहां आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने मन को चैनलाइज करने के लिए, अपने सेंसेस को चैनलाइज करने के लिए, ठीक है। और ये पूरा रथ का पिक्चर है, दैट इज अबाउट योर बॉडी, जो जन्म लेती है और मर जाती है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ भगवत गीता। इट इज टेम्पररी इन नेचर, दिस बॉडी इज टेम्पररी इन नेचर, इट लिव्स एंड इट्स डाई, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर डिपिक्शन हेयर मेंशन, राइट काइंड ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर लाइक द सेंसेस आर अटैच्ड टू योर बॉडी ना, ठीक है। तो अपनी बॉडी को चैनलाइज करना पड़ता है, अगेन राइट काइंड ऑफ एफर्ट, राइट काइंड ऑफ फूड अंदर डालना पड़ता है, तो बॉडी भी अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी। सो दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड एज अ समरी द whole summary of Bhagavad Gita in a nutshell. Is this clear to all? Yes, ma'am. Okay.
अगेन इस वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हमने सिर्फ बात करी है एज अ काउंसलिंग प्रोसेस, जो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको समझा दिया था कि हाउ भगवत गीता इज एक्टिंग एज अ काउंसलिंग प्रोसेस टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ अर्जुन। ठीक है, तो इस पूरे को काउंसलिंग के प्रोसेस की तरह देखा गया है। एंड टुडे देयर आर सेवरल रिसर्च पेपर्स, देयर आर सेवरल बुक्स ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जहां पे भगवत गीता से ही काउंसलिंग प्रोसेस को डिराइव करने की कोशिश की जा रही है, so that it can be applied here and it can be used to solve issues of people who are suffering from anxiety or depression or like any other common issue of life. Okay, so the whole this is about a counseling process which can help anyone to overcome the conflict inside himself. तो हमारे अंदर जो conflicts चलते हैं हम उसको भगवत गीता की नॉलेज की मदद से ओवर पार कर सकते हैं। तो लाइक दिस हेयर अर्जुन के अंदर जो फियर था, जो एंजाइटी था, जो कंफ्यूजन था, वो रिजॉल्व हुआ। सिमिलरली हम भी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं to establish peace and harmony in our life, to establish good relationship with self, others and with the whole world. And there is one more concept, जैसे कि यहाँ पर अर्जुन बहुत पिटी फील करता है। देयर इज वन इमोशन ऑफ पिटी, सुप्रीम इमोशन जो अर्जुन पोर्ट्रे करता है। ठीक है, उसको बहुत तरस आता है अपनी सिचुएशन के ऊपर। तो कृष्ण जी कहते हैं अपनी सिचुएशन के ऊपर तरस आता है, प्लस उसको अपने रिश्तेदारों के ऊपर तरस आता है। ठीक है, तो कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं ये जो इमोशन है इसको बहुत वाइजली यूज करना है और सही इंसान की तरफ यूज करना है। यू शुड यूज योर इमोशंस टुवर्ड्स अ सूटेबल पर्सन in a right manner. Otherwise, if you misuse your emotions, it is going to generate mental distortions. It is going to generate attachment, and attachment will lead to suffering in your life. So one has to follow one dharma. और हमारा धर्म क्या है? हमारा जो स्वभाव है उसके हिसाब से हमारा स्वधर्म है। और अल्टीमेटली अगर हम कॉमन धर्म की बात करें आपके और मेरे, तो वो है कर्म करते रहना और अब हमारा जो आउटकम है, वट एवर इज द आउटकम और जो रिजल्ट है उसको सरेंडर कर देना। ठीक है, टुवर्ड्स द हायर अथॉरिटी और टुवर्ड्स दिस यूनिवर्स जो कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वट एवर इज इन आवर कंट्रोल टू डू दैट इज आवर धर्म है। सो दैट इज इट। हाँ जी, बोलिए। क्वेश्चन है बट वो भगवत गीता से रिलेटेड नहीं है। अभी पिटी वर्ड का यूज किया, तो पिटी और सिंपैथी में कोई डिफरेंस है या both of these are the same thing? नहीं, there is a difference. But pity and sympathy are different. Yes, pity and sympathy are different. Pity में ना तरस का भाव है, you understand ना। sympathy में सिर्फ तरस नहीं है। sympathy is more positive than pity actually. sympathy में you try to sympathize, है ना, you try to understand. एम्पैथी में हम फील करते हैं सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, बट सिंपैथी में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सिंपैथाइज कि सामने वाला किस सिचुएशन में है। सो थोड़ा लॉजिक आ जाता है। हाँ, पिटी में लॉजिक खत्म होने लगता है। इट इज मोर ऑफ तरस आ रहा है आपको सामने वाले की सिचुएशन पे, दया आ रही है। तो पिटी हैज सर्टेन नेगेटिव कॉनोटेशन एज कंपेयर टू सिंपैथी। बेसिकली आप सेल्फ से नीचे। आवाज कट गई आपकी। मैम मैं यही बोल रही हूँ कि पिटी का मतलब फिर ये हो गया कि आप किसी को, जिस पे भी पिटी आ रही है उसको आप सेल्फ से नीचे रख रहे हो, तभी आपको उस पे दया आ रही है ना। हाँ, ऐसा कह सकते हो। सिचुएशन से कंपेयर करके देख रहे हो कि वो बेचारा है, वो लाचारपन है। हाँ, हेल्पलेस। पिटी में ये हेल्पलेसनेस वाला मोड आता है, और ये हेल्पलेसनेस वाला मोड किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लाइक ना तो खुद के लिए ना ही किसी और के लिए, क्योंकि आप वहां पर उसको ना हैंडीकैप कर देते हो, है ना। वो लिबर्टी टू ओवरकम दैट सिचुएशन आप खुद ही खत्म कर देते हो वहां पे, है ना। तो दैट स्टेज ऑफ हेल्पलेसनेस इज नॉट गुड। ओके मैम, मीन्स कंपैशन की भावना। ना, कंपैशन और भी अच्छा वर्ड है, वो तो और पॉजिटिव है। कंपैशन मीन्स दया ना। कंपैशन में आप सिंपैथी के भी ऊपर चले जाते हो। मतलब
आई गेस आप कोशिश कंपैशन में आप करते हो एम्पैथी के कि- भी ऊपर चले जाते हो. दैट इज हायर पॉजिटिव टर्म है. कंपैशन में यू ट्राई टू डू समथिंग सामने वाले के लिए, इतना होता है कंपैशन. वो जब आप खुद, change their है ना, देखो एक हमने, आपने बोला पिटी, which I was saying is it has some negative connotation, sense of helplessness आ गई है उसके अंदर. फिर हमने वर्ड किया सिंपैथी. ठीक है, जब हम दूसरे की सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे. फिर आता है एम्पैथी, जब हम खुद को दूसरों के शूज में डाल के देखते हैं और महसूस करते हैं वो सामने वाला क्या महसूस कर रहा है. दैट इज एम्पैथी. फिर आता है कंपैशन. कंपैशन में व्हाट हैपेंस, कंपैशन में आप सामने वाले के पास जाकर उसकी मदद करोगे उस सिचुएशन से निकलने में. कंपैशन में इतना बड़ा, मतलब इट इज दैट मच बिग इमोशन. कंपैशन इज वेरी मच पॉजिटिव इमोशन है. मैम एक और क्वेश्चन है, क्या हाँ. कंपैशन की फीलिंग से हमने हम्म. कोशिश करी किसी को हेल्प करने की, हम्म. उससे पिटी अराइज हो सकती है? बिकॉज नाउ वी नो, मतलब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है, हमें पता है कि उसमें हम कोई हेल्प कर ही नहीं सकते, तो फिर वो हमें उस पिटी वाली सिचुएशन पे ला रहा है कि अब हमें उस पर दया आ रही है कि हम हो सकता है, नहीं कर पा रहे हैं हेल्प. नहीं पॉसिबल है, हो सकता है, हो सकता है कि आप कंपैशनेट होते हुए भी आप मदद नहीं कर पा रहे हो, या मदद करने की कोशिश कर रहे हो तो भी कुछ नहीं हो पा रहा है, पिटी आ सकता है. बट अगेन कृष्ण जी ने यही तो बोला, आप इस पिटी को वहां यूज करिए ना जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, टुवर्ड्स द राइट पर्सन तो करिए. यही तो बोला उन्होंने. सपोज आप काउंसलिंग के सिस्टम के अंदर है एंड यू हैव अ क्लाइंट जो कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस वाली स्टेट में है. ठीक है, एंड you are just feeling pity about it, but the client has ability to overcome that. वहां पे पिटी कुछ हेल्प करेगी आपको? when the client has ability to overcome it, and you can clearly see कि जो भी सिचुएशन में क्लाइंट है वो उसकी अपनी गलतियों की वजह से है, और वो उन गलतियों से निकलना नहीं चाहता है, या अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, या एक्सेप्ट करके भी एफर्ट नहीं लगाना चाहता है. तो क्या वहां पे पिटी वर्ड सही है, पिटी दिखाना सही है? वहां तो मैम हमें ऐसा लगेगा कि हम ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली वो वाली फीलिंग आने लगेगी. बट दूसरा आप स्टेज देखिए ऐसा, एक देयर इज वन पर्सन जो कि पैरालाइज्ड है, और वो अपनी गलतियों की वजह से पैरालाइज नहीं हुआ है. देयर आर सर्टेन एनवायरमेंटल सिचुएशंस कि कुछ ऐसा हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन के अंदर है. यहाँ पे तो आप भी हेल्पलेस हो, वो भी हेल्पलेस है. यहाँ पर पिटी होना समझ में आता है एटलीस्ट. आर यू गेटिंग द डिफरेंस एटलीस्ट? यस मैम. क्लियर हो पा रहा है ये डिफरेंस आपको? कहाँ Yes. हम उस इमोशन को जनरेट कर रहे हैं और कहाँ नहीं, मतलब कहाँ उसकी वर्थ है और कहाँ नहीं. अदरवाइज आप दूसरी जगह पिटी दोगे ना तो वहां पे तो उस क्लाइंट को कोई हेल्प नहीं होने वाली है. इंस्टेंट आप उसको मोटिवेट करो, भाई लर्न हेल्पलेसनेस से कुछ नहीं होता, यू कैन डू इट, आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो. तो रेदर देन मोटिवेटिंग द पर्सन, अगर हम सिर्फ पिटी जोन में हैं तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे. ओके मैम, क्लियर. ओके. मैम कंपैशन का संस्कृत या हिंदी वर्ड क्या होगा? कंपैशन इज मोर ऑफ, जैसे आप दया बोल रहे थे, आई गेस दया के ज्यादा तरफ कंपैशन है, और पिटी तरस की तरफ ज्यादा होता है. करुणा भाव जो होता है वो कंपैशन है. ओके मैम. ठीक है, व्हेन यू एक्चुअली फील फॉर समवन एंड यू वांट टू हेल्प दैट समवन, दैट इज करुणा भाव. ठीक है, इज इट फाइन? आज काफी टाइम हो गया है, और दिस इज द एंड ऑफ भगवत गीता, जो कि ओवरऑल कहा जाता है द एंड मैसेज ऑफ भगवत गीता, जिसके बिना इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड. सो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, whatever has happened for good, whatever is happening is also for good, whatever will happen shall also be good. What have you lost that you cry for? What did you bring that you have lost? What did you create
that was destroyed. What you have taken has been from here. What you gave has been given here. What belongs to you today belonged to someone yesterday and will be someone else tomorrow. So change is the law of the universe. ठीक है, तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा. जो हमने खोया है, मतलब भगवत गीता कहती है आपने ऐसा क्या खोया जिसके लिए आप रो रहे हो, बिकॉज हमें लाइफ में जो कुछ भी मिला है ना वो यहीं से मिला है. तो अगर कुछ लॉस्ट भी हो रहा है तो वो यहीं जा रहा है ना वापस. हमने कुछ खुद से गैदर नहीं करा है, हमें सब कुछ मिला है यहीं से. खाना हमें धरती दे रही है, ठीक है, हमें पानी मिल रहा है, हमें नेचर से मिल रहा है, हमें पेरेंट्स ऑलरेडी मिले हैं, फैमिली मिली है, सब कुछ हमें यहीं से मिल रहा है. तो जो हम चीजें खोते हैं उस पर हम इतना ज्यादा शोक क्यों मनाते हैं, राइट? सो whatever is created one day it will be destroyed. जो कुछ है अल्टीमेटली एक दिन तो खत्म होना ही है. जो हमने लिया था वो यहीं से लिया था, ठीक है. सो जो आज हमारे पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है कल किसी और के पास था. ओके, सो अल्टीमेट चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स. सब कुछ टेम्पररी है. तो आई गेस अगर ये जस्ट हमें समझ में आ जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ issues from our life will dissolve. Okay, so with this Bhagavad Gita ends here, and there is one quick question जो कि मैंने एक ही डाला था और आज काफी टाइम हो गया है. जल्दी से जवाब देना. मैंने डाल दिया है, पोल चेक कीजिए अपना. Maslow's concept of meta motivation is very much similar to the concept of 1 siddhi, 2 bhakti, 3 moksha and 4 nishkam karma. Can you see the poll? Answer fast. Other people, only 2 votes are here. Okay. So 3 people have voted for Nishkam Karm. The answer is correct. So well done. मोक्ष एक आंसर आया है. एक्चुअली द आंसर इज निष्काम कर्म. एंड व्हाई? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. निष्काम कर्म का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हम बात कर रहे थे हमें अपने कर्म पे फोकस करना है, ठीक है. और उस कर्म से अल्टीमेटली निष्काम कर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? अल्टीमेटली गोल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, राइट. और जो मैस्लो का आप हायरार्की नीड पढ़ते हो उसमें जो लास्ट स्टेज आती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट. तो बिफोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देयर आर सर्टेन अदर बेसिक नीड्स इन लाइफ. वो बेसिक नीड्स को हम डालते हैं कैटेगरी ऑफ बी नीड्स, बेसिक नीड्स, ठीक है, बीइंग नीड्स. और फिर लास्ट में होती हैं, सॉरी मैं गलत बता रही हूँ, द इनिशियल one are the deficiency needs, D needs, and after that beyond that it is Growth B needs. हाँ, growth needs, और उनको being needs भी बोलते हैं, ठीक है. तो that is the stage of meta motivation. वो स्टेज होता है आपका मेटा मोटिवेशन का. वहां पर हम मेटा नीड्स की भी बात करते हैं, ठीक है. मेटा नीड्स जिसमें हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, खुद के पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जहां पे वी आर वर्किंग फॉर द सेक ऑफ वर्क ओनली, where we are talking about intrinsic motivation, ठीक है. तो वो concept of self actualization है, वो उसी को meta motivation बोलते हैं. और it is more in sync with the concept of nishkam karma in Bhagavad Gita. Any doubts to anyone? No, ma'am. Okay, hope this class is clear to all. कोई डाउट होंगे तो आप इकट्ठे करते रहना. विल डिस्कस द लास्ट डे संडे को. ओके, तो इट्स 9 PM and we'll meet tomorrow, and tomorrow we'll discuss the topic of Buddhism. Okay, Buddhism से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, so just be there in the class on time. Okay? Okay, ma'am. Okay. Yes.
Thank you Thank very much, ma'am. It was an amazing lecture. Thank you so much, ma'am. Okay, see you guys tomorrow. Thank you all. Thank you. Bye bye. Take care. Bye, ma'am. Bye.